Very good morning, everyone. This is Dr. Sonali, and today is the last session, the eighth session of speech, language, and communication, or rather, I would say communication, language, and speech series of Parent Empowerment Sessions 2021. And there were eight sessions, out of which this is the eighth one, which is a question answer round. And this series has been very insightful, especially for parents of children whose children are below 6 or 7 years, and they have enough information and resources now to work on developing language and building speech for the child. So, thank you to Sri Lalita ma'am for doing this series with us. And thank you to all the parents, participants for all their inputs, valuable inputs. And we'll continue to work on this particular WhatsApp group for this topic throughout this month through video messages and voice messages and interactions and questions and answers. So, starting with the question answer round today, let's hear from Sri Lalita ma'am. She has some questions to ask before we hand over the questions to the participants. So, over to you, Sri Lalita ma'am. Thank you. Good morning, all. So, as I have already done the session, so I'll be asking few questions to know, um, have it reached properly the message what I have conveyed. It have it reached properly what you have known from my session. So I will know by your answer that how much it has reached. And so I'll start asking from communication, then I'll ask from language, then I'll go to vocalization. So it will be from part to part so that I can know in which part it has reached completely and how parents has tracked their goal. Okay. So in communication, I want to know like what kind of pictures and what kind of communication board have you introduced, and what do you think the importance of the communication board is? Have you started using it? Ma'am, we have introduced choice boards, communication boards, schedule boards, and definitely it has helped, both ways to the kid and to the parent as well. Because initially, when I used to, tell my kid anything, तो communication मुझे पता नहीं चलता था, how much he is understanding, or at the same time, if he wants to communicate anything, हमें भी problem होती थी. अब क्या है, मैम, with few objects, or whether it's communication board or choice board, ma'am, वो communicate कर पाता है by pointing. So Hmm. we have, started this, I think a month back, and within a month's time, I feel उसका जो choice है और उसका communication है, that ways has improved a lot. Okay. So have you felt any difficulties in using communication board? Everyone, मैम I am इनिशियली asking everyone. एक दो दिन में थोड़ा सा बच्चे को समझाने में होता है, but gradually Vyan is adapting to the environment, and whatever we are trying to inculcate, तो Okay. gradually अब इतना difficult नहीं हो रहा. Okay, very good. How about the pictures you are using? What kind of pictures are you using in communication board? The ma'am pictures being used are the of the original objects जो हमने click करी है scrapbook में लगा रखी हैं, and we give the options. And yes, it has definitely helped Dhruv to evolve. कि वो जब पहले बिल्कुल नॉन वर्बल था, एटलीस्ट अब वो एक एक सिंगल वर्ड्स पे आ गया है. रीजन बीइंग ही नोज कि नाउ व्हाट इज व्हाट. एंड अब तो 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स एटलीस्ट अब उसने वर्ब्स के साथ बोलने शुरू कर दिए हैं कि मम्मी और यो दे दो, Hmm. पानी दे दो, दूध दे दो. तो दैट हैज बीन इवॉल्व. तो ये है कि जो ओरिजिनल है वही हम लोग यूज कर रहे हैं और वही बेनिफिशियल रहता है क्योंकि बच्चा को रिलेट कर पाता है चीजों. Okay, very good. So, any other kind of communication are you using rather than only communication board? Any signs?
मैम Ma'am, with मैंने बोर्ड objects नहीं also यूज we are किया। doing it. ओके, वन बाय वन। हाँ बोलिए वियान मम्मा। Ma'am, with objects also, ओके। I'm giving him option, giving him choices. Like I mentioned, I think in the class that I'm giving him choices in terms of picking up his own clothes, which shirt he wants to wear, or which lowers he wants to wear. Similarly, in the case of ma'am, fruits है या food है या उसकी कोई पसंद की चीज है और be it a toy, तो पहले मैम चॉइस देती हूँ एंड देन ही पॉइंट्स उसे क्या चाहिए, तो उसकी मैम उससे पॉइंटिंग भी बेटर हो रही है ऑफ कोर्स एंड मांग लेता है, चॉइस कर लेता है, उसके बाद आई ट्राई टू मेक हिम स्पीक अ वर्ड जैसे कि दे दो, तो वो भी एट द सेम टाइम इम्प्रूव हो रहा है। ओके। Ma'am, like with Jay, I'm using Avaz app also. Sometimes, like ma'am, with so many activities going on, तो आवाज ऐप भी मैं इसके साथ में यूज करती हूँ एंड ही इज लाइक, मैं ये नहीं बोलूंगी ही इज फुल्ली इक्विप्ड नाउ, पर वो समझता है कि हाँ मम्मी मुझे क्या करवा रही है। लाइक आई जॉइन दैट आवाज सीरीज विद वंदना मैम, तो उससे भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हेल्प है। ओके। आवाज में आप आवाज की पिक्चर्स यूज करते हैं, आपकी पिक्चर्स यूज करते हैं? मैम दोनों हैं, आवाज की भी है और मैंने अपनी भी कुछ कुछ डाली हुई है। ओके। सो इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने उस पे वाटर बॉटल है और आप जो कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हो वो वाटर बॉटल और वो अलग हो। नहीं मैम, जैसे उसकी जो अपनी चीजें हैं, जो ब्रश है, हाँ। वाटर बॉटल, कप है, वो सब उसके ओरिजिनल हैं। लाइक ओके। अब नॉर्मल फ्रूट्स हैं तो वो ये कि हाँ कभी कभार लाइक जो उसमें प्रोवाइडेड है, ऑरेंज है, एप्पल है, वो यूज होता है, पर जो एक्चुअली जो कम्युनिकेशन की चीजें हैं वो उसी की पिक्चर्स डाली हुई हैं। ओके, वेरी गुड। तो इज देयर पर्टिकुलर कि आप कब आवाज यूज करते हो और कब कम्युनिकेशन बोर्ड यूज करते हैं? नो मैम, ऐसे जब लाइक नॉर्मल डे टू डे जो रूटीन चल रहा होता है, देन आई शो हिम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स एंड कम्युनिकेशन बोर्ड आल्सो। ठीक है मैम, लाइक हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं बेड पे, देन आई सर्टेनली यूज दिस आवाज ऐप, क्योंकि मैम वो ऐसी चीज है आप शांति से बैठ के करा सकते हो, चलते फिरते आप कहीं भी खाना खाते खाते बीच में आवाज ऐप हिला के दिखा सकते हैं बच्चे को। तो लाइक शांति से हम जब बैठे होते हैं कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तब मैं इसको फिर आवाज ऐप का मतलब उसको करवाती हूँ कम्युनिकेशन। Okay, what about reinforcement box and यस मैम, रीइंफोर्समेंट बॉक्सेस देयर, लाइक जो भी जय की फेवरेट चीजें हैं, बबल्स हैं, उसके कुछ कुछ टॉयज हैं जो उसे ज्यादा पसंद है, तो वो उसी टाइम जब वो एक्टिविटी करता है तभी दी जाती हैं, अदरवाइज फिर फुल डे उसको नहीं देती हूँ। okay. So anybody else who are using communication can tell me how they are using? आप जब कम्युनिकेशन बोर्ड यूज करते हैं तो आप कैसे लैंग्वेज को इंक्रीज करते हैं? मैम फर्स्ट तो ट्राई करती हूँ कि वो खुद बोले पॉइंटिंग के साथ, अगर बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे पेयर है तो प, हाँ, तो फिर वो प बोलेगी। वेरी गुड। और हाँ, खिला दिया, उसके बाद सर्विका ने फ्रूट खाया तो विच फ्रूट? पेयर, तो फिर वो रिपीट करती है पेयर। ओके। तो क्या आपने कभी फोटो के साथ दिखाने की कोशिश की है क्या खाया? उसके बाद फोटो दिखाया? यस मैम, यस मैम। ओके, तब वो रिकॉल करने की ट्राई करती है? मैम वही है कि थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, जैसे फर्स्ट एटलीस्ट लेटर बोलना, तो फिर वो बोलती है प। वो अभी मैम कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जैसे आओ, दे दो, या कभी कभी दे दा, ये दोनों कंबाइंड बोलती है, पापा मम्मा, ये सब कंबाइंड। नहीं तो फिर बाकी जितने या फ्रूट्स हैं या फिर कुछ भी है, तो उसका बस जो फर्स्ट लेटर होता है वो साउंड देती है, वो जो उसको नहीं पता है प्रॉम्प्ट करने से। हाँ, तो फर्स्ट लेटर, या कभी कभी फुल बोल जाती हैं, मतलब क्लियर नहीं, पर जैसे उसको स्ट्रॉ चाहिए होता है कभी कभी, तो वो पॉइंट करेगी, उसको पूछा जाएगा क्या चाहिए सर्विका को, तो वो पॉइंट करेगी, तो उसको बोला जाता है स्ट्रॉ,
तो फिर वो बोलती है स्ट्रॉ या इस तरह से कुछ बोल देती है। ओके। तो ऐसा है अभी मैम। और जो 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 वर्ड्स वो जानती हैं जैसे पापा, आओ या दे दो, तो वो कब मतलब मैक्सिमम टाइम तो अभी ऐसा हो गया है कि थोड़ा लाउडली बोलती हैं। अदरवाइज जब उनको बोला जाता है कि बोलो पापा या फिर बोलो देदा, तो एकदम धीरे से बोलेगी देदा। फिर जब कहेंगे कि सुना नहीं या लाउडली, तो तब फिर वो थोड़ा सा जोर से बोलती है, तब उनका थोड़ा सा ऊपर जाता है। ओके। अदरवाइज हाँ, ये वाला थोड़ा है कि इसको कैसे फेड कर सकते हैं। मतलब हर बार तो ये बोलना नहीं बनता है कि थोड़ा जोर से बोलो या सुना नहीं, तो इसको कैसे फेड कर सकते हैं, तो मेरी क्वेरी आपको, यही है। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब वोकलाइजेशन के ये कराते हो, बच्चे के साथ कराते हो ना, तो आपको गेम खेलना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा लाउडली बोल रहा है, जितना लाउडली बोल रहे हैं। या वैसे एक्टिविटी कि मम्मा दूसरे कमरे में है और पापा ने बोला मम्मा को बुलाएंगे, पर जोर से बुलाएंगे ताकि मम्मा आ जाए। ओके, क्योंकि मम्मा रीइंफोर्समेंट होती है, मम्मा की ज्यादा जरूरत होती है ना यस। सर्विका को। तो आप पापा बोलेंगे मम्मा को बुलाओ, ठीक है, पर यहाँ से बुलाएंगे। आप जितना आपको लगेगा कि ये उसका हाईएस्ट पीक है कि वो मम्मा बुला रही है, तब आप दूसरे कमरे से आओगे, वो उसको रीइंफोर्स करेगा। ठीक है, सेम हो सकता है आप एक डिस्टेंस पे हो, ठीक है, और वो जितना लाउडली आपको बुलाएगी आओ मम्मा या आओ, तो आप उतने करीब आओगे। बच्चे को मैम दिखना चाहिए रीइंफोर्समेंट। मैम जैसे टॉयलेट जाती हैं वो, तो फिर एंड में उसको मेरी जरूरत पड़ती है, मैं ओके। वहां से हट जाती हूँ उसको हाँ। बिठाने के बाद। हम्म, और फिर मैं बोल देती हूँ कि सर्विका डन हो जाएगा तो फिर मम्मा को कॉल करेंगे, कॉल मम्मा। और हम्म, फिर मैं वहां से उसके नजरों से दूर हो जाती हूँ। हम्म, फिर जब वो बुलाती है मतलब मम्मा या कभी कभी पापा ही बोल देती है, हाँ। तो लेकिन वो अपने ही पिच पे रहती है। मतलब अगर हम्म, उसको बोलूं कि थोड़ा मम्मा ने सुना नहीं क्या बोला, हम्म, थोड़ा जोर से बोलो, हम्म, तो मतलब वो टाइम पे तो उसको नीड होती है ना मेरी, हाँ। लेकिन वो अपना वाला ही पिच मेंटेन कर रही है फिलहाल। तो ये क्या होता है, टॉयलेट इको करता है। हम्म टॉयलेट जो एरिया होता है ना, वो इको करता है, हम्म बिल्कुल हम्म साइलेंस होता है। तो वहां पे हम्म अगर हम धीरे से भी बोलते हैं ना, तो हमारे हम्म सिस्टम को ऐसा लगता है हम लाउड बोल रहे हैं। आप भी हम्म ट्राई कर सकते हो, आप जब हॉल में बात कर रहे हो और जैसे आप हम्म बाथरूम में घुस के बात करोगे, आप खुद अपना टोन लो कर लोगे। यस मैम। ओके, वो इको होता है। तो बच्चे को ऐसा हम्म लगता है जब वो बोलते हैं तो उनको लगता है वो लाउड इनफ है। ठीक है, हम्म। तो आपको ये सारे एक्टिविटी करने पड़ेंगे, जैसे कि और पास एक और करो। चीज मैम, जैसे अगर रूम से बोलो कि बुलाओ, अगर रिद्वी दूसरे रूम में है और इसको इधर से बोलो कि रिद्वी को बुलाओ, कॉल हम्म, रिद्वी, तो वो कुछ तो बोलेगी और वो ना हाथ से इशारे करने लगती है। मतलब जैसे बुलाने का के लिए इशारा करते हैं ना, हाँ। वैसे रिद्वी है नहीं सामने, लेकिन वो ओके। हाथ से, वो पिच वही सेम रखती है और हाँ। हाथ से इशारे करने लगती है। तब ओके। ओके। फिर उसको बोलना होता है कि सर्विका स्पीक लाउडली, हम्म। तब फिर वो जरा सा थोड़ा सा बढ़ाएगी, लेकिन फिर वही हाथ से, मतलब वो फिर इशारे पे डिपेंड हो जाती है फिर हम्म। वो। क्योंकि उसने हाँ। बहुत ज्यादा साइन यूज किया है ना, वो कम्युनिकेशन करती थी उससे। यस आपने सिखाया होगा कि बुलाना है करके। यस मैम। आपको क्या करना है, रिद्वी को उसके आंखों के सामने रखना है, पर रिद्वी उस साइड मुड़ी हुई है, सर्विका की तरफ नहीं देख रही है। तब हम आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, देखो रिद्वी हमारी तरफ देख नहीं रही है, आपको बुलाना है ताकि रिद्वी टर्न हो जाए। ओके, पर इस चीज को पहले आपको मॉडल करके दिखाना है। ठीक है, आप खड़े हैं, सर खड़े हैं, तो सर ने आपको बुलाया मम्मा जोर से, तब आपने टर्न किया और बोला हाँ। ओके, ये चीज सर्विका देख रही है। यस मैम। ओके, मैम ये तो जब होता है। हाँ बोलिए। मैम, इस तरह से तो होता है, मतलब जैसे हमको कॉल करना होता है आपस में, तो पापा प्लीज हाँ। कम या फिर मम्मा आओ, हम्म, इस तरह से होता तो है। अभी उसका आउटपुट अभी मिल नहीं रहा है फिलहाल। आप ये वाला ट्राई करके देखिए, आपके आंखों के सामने रखा हो इंसान, पर इंसान उल्टा बैक फेसिंग कर रहा है हमें। आप जैसे बुलाओगे वो टर्न करेंगे।
ओके। या तो एक और अप्रोच है जिसको हम कहते हैं लाउडनेस को इंक्रीज करना। आप हेडफोन होता है, हेडफोन, यस मैम। आपने हेडफोन लगाया और उसके बाद बोला अभी हम मम्मा बोलेंगे, ओके। या तो आप हो सकता है कि जैसे आपने अगर इसको भी कप कर लिया, आपकी ईयर्स को भी, तब भी आप यूजुअली आपकी लाउडनेस से ज्यादा बोलते हो। यस मैम। आप ये ट्राई करके देखिए कि रिद्वी वहां पे खड़ी है बैक फेस करके, आप हल्का सा उसके कान को कप कर दीजिए और बोलिए आप बुलाएंगे हम रिद्वी को, ओके, रिद्वी को बुलाएंगे, ओके। इसको हम हमारे टोन में कहते हैं लाउडनेस इंक्रीज हो जाता है। ये ऐसे करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने इसको इंक्रीज कर देते हैं। इसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ये ब्रेन अपने आप एक्टिव कर लेता है। यस मैम। जैसे आपने कान में कुछ म्यूजिक लगाया, आपसे कोई बात कर रहा है, आप कितनी लाउडली थोड़ा बात, जोर से बोलते हैं। हाँ। हाँ, सेम साइकोलॉजी है, ओके। ये अच्छा। एक्चुअली ब्रेन एक्टिव हो जाता है जब उसको लगता है कि हमारा हम सुनते कम है, मतलब हम बोलने के लिए भी मुझे लाउडली बोलना पड़ेगा। यस मैम। ओके, आप ओके ये मैम, ट्राई ट्राई करके करती देखिए। हूँ। हाँ, हाँ, ट्राई करती हूँ। थैंक यू मैम। हेलो हाँ, हाँ, बोलिए। मैम, मैं पूछ सकती हूँ क्या अभी? हाँ, हाँ, बोलिए। मैम, ये क्वेरी मैंने स्पीच वाले लैंग्वेज वाले में भी डाला था और उसमें भी डाला था, बट कोई रिप्लाई नहीं मिला था। जैसे देवांशी का है ना कि उसे वर्ड्स पता है, पहले जो उसका सिचुएशन था ना कि उसको वर्ड पता नहीं थे, बट अब उसको वर्ड पता है। सपोज उसे पता है कि मम्मा चलो बोलना है, वो जनरली मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ, तो उसको जब बोलो ना तो वो एक बार, बट अब ये इंक्रीज हुआ है कि वो 2-3 बार बोलेगी कि मम्मा चलो मम्मा चलो मम्मा चलो, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करती हूँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया तो वो बोलती है कि मम्मा चलो, अगर उसकी बहुत जरूरत है मेरी। बट ये नॉर्मल दिन में ना, जैसे कल की मैं बात बताऊं तो मैंने बोला कि वहां गोट नहीं है, तो कहती चलो दिखाती हूँ गोट है, और वो एक साथ बोला। तो ये ना बोलना चाहती नहीं है। मैंने रेनफोर्स भी यूज किया कि देवांशी ने बोला, तो ये थोड़ा सा अगर बोलती भी रहती है ना, और मैंने रेनफोर्स यूज किया, जैसे आपने बताया था कि रेनफोर्स यूज करना है, तो ये चुप हो जाती। इसके बोलने वाले में ना रिनफोर्सर यूज नहीं होता। जैसे अगर ये कुछ बोल रही है ना, मैंने बोला ये देवांशी ने बोला, बस ये इमिडिएट चुप हो जाती है, टर्न लेती है और कहीं अपने आप को किसी और चीज में बिजी कर लेती है। जहां तक मुझे समझ आता है, इसको वर्ड्स की कमी नहीं है। जैसे कुछ होता है ना कि बच्चे को वर्ड्स नहीं मिलते या एज सच कुछ, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट एक लेवल पे है कि अपनी नीड्स, अपने हर एक रिक्वायरमेंट, हर एक चीज ये बता सके, वो इसका है। और अभी जो पूछा उन्होंने क्वेश्चन कि वो बहुत धीरे बोलती है, वो इनिशियली देवांशी का था ना कि मैंने उसको स्टार्ट किया है कि मम्मा बोलो कि मम्मा चलो, तो ये मम्मा चलो तो बोलती है, बट वो होता क्या है कि बहुत धीरे होता है। फिर मैंने इग्नोर किया, फिर थोड़ा लाउड किया, फिर थर्ड टाइम में ये मम्मा चलो मम्मा चलो मम्मा चलो। तो अब इसका हो गया कि मेरे को 3 बार बोलना है, तो एक बार बोलेगी मम्मा चलो स्लो, सेकेंड एंड थर्ड में वो बिल्कुल नॉर्मल पिच पे होता है। उसके अलावा ये कहीं खुद से नहीं बोलती कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। इनफैक्ट जैसे बोला ना, तो वो मैंने फ्लैश कार्ड सपोज दिखाया कि ये कौन है, पापा मम्मी भाई, ये सबको पहचानती है और बहुत अच्छे से पहचानती है। बट एक होता है ना कि पापा आ जाओ, दीदी आ जाओ, मम्मी आ जाओ, तो वो चीज ये नहीं बोलती। हाँ, सपोज मैंने बोला कि देवांशी ये कौन है, तो बताइए कि भाई है, पापा है, कलर कौन सा है। तो वो अब वो स्टेज आ गया है कि सपोज मैंने एप्पल दिखाया तो व्हाट इज दिस, इट्स एन एप्पल, इट्स एन एप्पल एंड कलर ऑफ एप्पल इज, इट इज रेड। बट वो खुद से जो एक स्पीच है ना कि ये क्या है, नहीं है, कैसे है, वो चीज नहीं है। जैसे अभी भी ये इसको रियलाइज होता है कि जब भी मैं ऑनलाइन क्लास में बैठती हूँ तो इसको अपना ही है, तो ये राइम्स गाना स्टार्ट करती है। आपको 2 चीज याद रखना है, हम एक एक पे ये करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्पॉन्टेनियस स्पीच आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही स्पॉन्टेनियस स्पीच बिल्ड होता है। अब जिस लेवल पे देवांशी है, आप उसके साथ, आप अगर चाहते हो कि ये आके बोले कि मुझे
अभी उसको खाने में क्या चाहिए। आपको पता होगा कि ये 10 चीजें तो बेसिकली वो हर रोज पूछती है मुझसे, है ना, और पूछने की कोशिश कर सकती है। आप उसी सिर्फ उसका बोर्ड बनाओगे, सिर्फ उसका, और आपको याद रखना है सिर्फ उस बोर्ड के अलावा और कोई चीज आप एक्सपेक्ट करना स्टार्ट नहीं करोगे। अभी सिर्फ बोर्ड की चीजें बतानी है। जैसे मैम आपने चॉइस बोर्ड कहा था ना, तो चॉइस बोर्ड पे ये बोलती है, हाँ चॉइस बोर्ड वो फोटो दिखा के ये बोलती है कि पिज्जा, बट वो दे दो ले लो वाला नहीं है। मैंने रियल ऑब्जेक्ट, जैसे मधु मैम ने बोला था कि जैसे ये पिक्चर से ये खेलना स्टार्ट कर देती है, इसको वो चीज समझ में नहीं आती कि मतलब ये, तो रियल ऑब्जेक्ट से भी मैंने किया था कि मतलब रियल ऑब्जेक्ट के साथ करना है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट के साथ ये ज्यादा फ्रेंडली होती है। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि खाना है तो वो खाना है, बट वो चीज ना जैसे कुछ अपने तरीके से नहीं आता कि मैंने सपोज इसको टॉयलेट जाना है। कल रात की मैं बात बताऊं, ये 3 साढ़े 3 बजे, ये ऑलमोस्ट ये ना 5 दिन से रेगुलर हो रहा है कि ये उठ जाती है, रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, सब कुछ करती रहती है, बट ये बता नहीं पाती कि क्या है सब। और पता तो इसको होता है कि ये चीज हो रहा है। अब मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ कि ये रो क्यों रही है। तो 4-5 दिन से इसका यही शेड्यूल है कि 3 बजे उठ जाएगी, 6 बजे सोएगी, 7 बजे सोएगी। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब आपने क्या नोटिस किया आपने उसके बाद कि उसको क्या चाहिए होता है उस टाइम पे? मैम एक्चुअली ना ये पहले अपने पापा के साथ सोती थी, बट अभी ना 2-3 दिन मैंने इसको अपने साथ सुलाया, क्योंकि ये दोनों भाई बहन एक साथ सोते नहीं है। अब इसका क्या है ना कि ये इसको बिल्कुल मेरे को हक करके सोना है। एक पॉइंट के लिए भी मैं इधर उधर हो जाती हूँ ना, तो ये उठ करके रोना चिल्लाना, और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको हाथ पे लेकर के, जो बच्चे का होता है ना कि छोटे बच्चे इस पे शोल्डर पे सोते हैं, बिल्कुल ये वैसे ही सोने की कोशिश करती है। और थोड़ा सा भी हिल गई, सपोज मैंने टर्न ले लिया, तो इसको फील होता है इसने मेरा शक्ल नहीं देखा और ये बहुत तेज रोना स्टार्ट करती है। और वो इचिंग के लिए मैं खुद भी नहीं समझ पाती कि इसको एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कभी पेन किलर दिया, कभी कुछ, बट कल रात में मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये मेरे लिए ही करती है कि टर्न किया तो, या कुछ इस तरीके का। और तो आप कैसे काम डाउन करते हो? बोलते हो कि देवांशी मम्मा यही है, इट्स ओके? हाँ वही, मतलब ये तो मैंने आप ही लोगों से सीखा कि मतलब देवांशी मम्मा यही है और डोंट वरी डोंट वरी। तो वो लाइट जो बंद रहती है ना, तो शायद मेरी मेड भी मतलब उसको लगता है कि मुझे मेड या पापा के साथ सुला दिया। तो ये लाइट जब ऑन होता है, चेहरा देखेगी, फिर भी वो आधे 1 घंटे तक रोती रहती है। फिर उसको देवांश के पास से मुझे जैसा पर्सनली फील होता है कि इसको ये जब है कि मुझे भाई के साथ नहीं सोना, क्योंकि पहले मैं सिर्फ देवांश को लेके सोती थी, तो मुझे सिर्फ मम्मी के साथ मैं सोऊंगी, देवांश को नहीं सुना। जैसा कल रात में मैं इसको लेकर के किसी और रूम में चली गई, देवांश को हटा दिया, जैसे वो हटी देवांश हट गया, ये नॉर्मल हो गई। आप उसको बोलिए एक छोटा सा जो डिम लाइट होता है वो आप हमेशा आप यूज कीजिए रूम में। ओके, जैसे इसको ना डिम लाइट से शुरू से ही, पहले इसको स्लीपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो वो चीज तो अभी भी है, बट उतना नहीं है। जैसे इसको सोने में 1 घंटे लगता है, अगर एक भी डिम लाइट, इवन ऑल आउट का लाइट भी अगर जलता है ना, तो इससे वो बेड पर से भागने का रास्ता मिल जाता है और ये उतर के रूम से बाहर भाग जाती है। और पूरा रूम अगर अंधेरा कर दिया ना, एकदम अंधेरा, पिन ड्रॉप साइलेंट, तो ये आधे घंटे में सो जाएगी। और जैसे वो लाइट चलाया, ये उठ के रोना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। इवन दरवाजा भी अगर खुला ना, तो वो छोटा सा लाइट अगर इसके फेस पे गया तो ये उठ के बैठ जाती है। ये चीज आप उसको वॉइस दीजिए, आप बोलिए जब भी आप करवट ले रहे हो या आपको लग रहा है कि अभी ये रोना शुरू करेगी, तो मम्मा की वॉइस तो बच्चे बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, तो आप उसको वॉइस दीजिए। जब रोने के बाद नहीं, रोने से पहले ही आप उसको वॉइस दीजिए कि मम्मा यही है। ओके देवांशी, मम्मा यही है। ओके, यूजुअली क्या होता है, बच्चे मम्मा की वॉइस बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, तो आप वॉइस दे के देखिए। और हमेशा वो चॉइस बोर्ड जो आपका कम्युनिकेशन बोर्ड होता है, उसको यूज कर, आपने उसको लगाना नहीं है, आपको उसको यूज करना सिखाना है। ठीक है, आप कोई चीज खा रहे हो, अगर वो चीज उस पे है, तो
तो आप पहले किसी और के साथ यूज करना सिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल उसके मामा रहते हैं ना उसके साथ, तो आप उसको बोलोगे पॉइंट करके कि मामा ये पॉइंट किया आपने उसको, फिर आपने बोला दे दो। आपने सिर्फ पिक्चर के नेमिंग को ध्यान नहीं दिया, अभी हमारा फोकस है कि वो दे दो बोलना परफेक्टली स्टार्ट कर दे। तो आपने पिक्चर के नेमिंग पे ध्यान नहीं दिया, आप सिर्फ पॉइंटिंग पे ध्यान दे रहे हो, दे दो पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हो कि दे दो कंटिन्यूअसली बोलना स्टार्ट कर दे, एक वर्ड जो है वो कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस हो जाए। फिर आपने धीरे धीरे बोला कि इडली दे दो, ठीक है। जैसे जैसे आपको लगा कि दे दो बिल्कुल करेक्टली बोल रही है, अभी आपने धीरे धीरे ऑब्जेक्ट का नाम भी बोलना स्टार्ट किया, वैसे ही वोकैबुलरी इंक्रीज होता है। एक ही वक्त पे हम दो वोकैबुलरी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, एक एक से ही फोकस करना है। पहले हम दे दो से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे पीछे आएगा वो है कि ऑब्जेक्ट भी बोलना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंसान से स्टार्ट करेंगे कि मम्मा इडली दे दो या भैया इडली दे दो। हमेशा से ही सेंटेंस से ही स्टार्ट नहीं होता है, इवन जो उसको मम्मा पता भी हो तब भी वो मम्मा दे दो से नहीं आएगा, पहले सिर्फ दे दो आएगा, फिर मम्मा दे दो आएगा। हमेशा वन वर्ड से ही स्टार्ट होता है। तो आपको अभी सिर्फ फोकस करना है, आप सब भूल जाइए कि वोकैबुलरी है नहीं है, कुछ नहीं है, हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, कुछ भी हो जाए उसी से हमें ट्रैक करने में आसान होगा कि मैंने दे दो से स्टार्ट किया, अभी मैं उसको करा रही हूँ और मुझे ऐसा लग, आप खुद देखोगे कि दे दो करेक्टली आ रहा है, हर चीज पे वो दे दो बोल रही है। तो उसके बाद आप पीछे जाओगे, क्या दे दो, आपने पॉइंट करके बोला इडली दे दो या डोसा दे दो या पराठा दे दो, जो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पराठा के अगर उसने परा भी बोला या था भी बोला तो भी आप उसको एंकरेज करोगे, ओके आपने पराठा बोला, आप उसको करेक्ट नहीं करोगे, आप एंकरेज करोगे। आप ये नहीं, अगर उसने बोला पाथा तो आप बोलोगे ओ पराठा चाहिए, ओके। आप इनडायरेक्टली बच्चे को करेक्ट कर रहे हो, ये बोल के नहीं कि नो पठा नहीं बोलते हम पराठा बोलते हैं, नहीं बोलना है, वो ऑटो करेक्ट होता है। जब उनको हम करेक्ट आंसर देते हैं बच्चे खुद अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नो बोल देंगे तो वहीं पे रुकने की चांसेस होती है, ओके। तो आप पहले दे दो पे फोकस कीजिए अच्छी तरीके से मॉडल करके, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट पे आइए, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसको ऑलरेडी पता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर दे दो उस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन करेक्टली स्टार्ट हो जाए। इसलिए मैम जैसे मैं शायद हो सकता हूँ गलत तरीके से कर रही हूँ, एक सिचुएशन लाइक कि कुछ भी हो, जैसे दे दो इसका स्टार्ट आप ही ने कराया था, इनिशियल स्टेज पे था, तो उस टाइम पे इसने फिर आपने 2 वर्ड में उस समय इसको खींचा था कि 2 वर्ड्स पे क्या देना है, पेंसिल देना है। अभी जैसे काफी टाइम हो गया दे दो वर्ड यूज करते हुए, दे दो वर्ड यूज करते हुए, तो अभी मैंने चिप्स लिया तो उसको मैं रिपीट, मेरे हाथ में चिप्स है तो फिर इसके साथ मुझे कैसे रिएक्ट करना है। जैसे पहले का था कि देवांशी चिप्स दे दो, तो जो मैं बोलूं वो बोल देती कि चिप्स दे दो, या बोलती अगर 3 वर्ड भी बोला कि मम्मा चिप्स दे दो तो ये 3 वर्ड यूज करती है कि चिप्स दे दो या नहीं देना है। तो इसको मैम कैसे स्टार्ट करेंगे? चिप्स है आपके हाथ में, आप कुछ नहीं बोलोगे, आप बस पॉइंट करोगे और सिर्फ बोलोगे दे दो। कैसे बोलेंगे? पॉइंट किया दे दो, उसको पता है ऑलरेडी चिप्स क्या है, पर आपका फोकस अभी सिर्फ दे दो पे है और कुछ नहीं है। हम अभी सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि दे दो परफेक्टली आ जाए, तो हमें सिर्फ दे दो पे फोकस करना है। उसको चिप्स पता है, आपको पता है चिप्स पता है, जब उसने पॉइंट करके दे दो बोल दिया तब आप एंकरेजमेंट के लिए बोल दो ओके चिप्स दे दो, आपने दे दिया, ठीक है। आपने इनडायरेक्टली करेक्ट भी कर दिया, आप उसको एंकरेज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली आपने उसको मोटिवेट कर दिया कि चिप्स दे दो बोलते हैं। आपने बोला नहीं कि देवांशी हमें बोलना है चिप्स दे दो, नहीं बोला, पर आपने इनडायरेक्टली उसको मैसेज पहुंचा दिया कि हम बोल सकते हैं चिप्स दे दो। पर इससे क्या होगा, दे दो भी नहीं रुकेगा और नेक्स्ट टर्न के लिए आपने उसको ऑलरेडी मोटिवेट कर दिया।
तो मैम जैसे अभी जैसे मैं यूज करती हूँ ना कि सपोज वो आई मेरे पास तो उसने मेरा हाथ खींचा, मैंने बोला देवांशी बोलो मम्मा चलो, तो वो बोलती है मम्मा चलो मम्मा चलो। तीसरे में उसका टोनिंग जो है वो नॉर्मल रहता है जैसे हमारा है। सपोज उसको कहीं जाना है तो मम्मा चलो, मम्मा दे दो, मम्मा, तो उस तरीके से अभी उन सबको छोड़ के सिर्फ दे दो पे फोकस करो। और हाँ, नहीं नहीं, आओ आप 2-3 वर्ड ले लीजिए। दे दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो पूछना है। ठीक है, आपको कहीं पे लेके जाना है तो आपको बोलवाना है सिर्फ आओ या चलो। आप जो भी उस पे फोकस कर रहे हो, पहले से आप जिस पे फोकस कर रहे हो, जैसे चलो और दे दो, आपने सिर्फ इस पे फोकस किया। या तो उसको बुलाना है या तो उसको कुछ चाहिए, यही दो तो अभी होता है जो उनके लिए नीड होता है। बाकी सब के लिए आप कम्युनिकेशन बोर्ड से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये दो तो उनको चाहिए चाहिए जो आप वर्बली करवाना चाहते हो। तो जिस टाइम पे उसको दे दो होता है, आप उस पे फोकस करेंगे, सिर्फ दे दो। ओके, और इस पे आप, अगर उसने सिर्फ बोला चलो तो भी वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद वो मम्मा को देख ही रही है। आप उसने जैसे ही स्टार्ट कर दिया चलो, आप बोल सकते हो ओके आप मम्मा को बुला रहे हो। ओके, तो आपने इनडायरेक्टली उसको बता भी दिया कि मम्मा चलो बोल भी सकते हैं, और दे दो में भी आपने बोल दिया कि आप चिप्स दे दो भी बोल सकते हैं। आपने उसको बोल के करेक्ट नहीं किया, पर आपने उसको ऑलरेडी बोल दिया। और मैं हमेशा से ये कराती हूँ, मैंने देवांशी को देखा है और मुझे पता है कि वो ऐसी चीजें बहुत जल्दी समझती है। ठीक है, समझती उससे जितना ज्यादा आप पोक करोगे, उतना ज्यादा वो क्या हो जाती है ना, अपना इंटरेस्ट लूज कर लेती है। आप उसको स्मार्ट वे में समझाओगे, इनडायरेक्टली समझाओगे, वो समझ जाती है। ओके, तो आप इसी चीज पे फोकस करेंगे। कम्युनिकेशन बोर्ड रेगुलरली यूज करना है। उसके अलावा दे दो और चलो पे ही वर्बली फोकस करना है। जो आप छोटे मोटे कराते हैं वो तो आप हमेशा कराओगे, जैसे आपने फ्रूट्स का नेमिंग कराया, वेजिटेबल का कराया, सॉर्टिंग कराया, ये सब तो चल ही रहा है। पर जो वर्बली आप मोटिवेट कर रहे हो वो आप इस दो पे ज्यादा करोगे, इसी दो पे करोगे आप। आपका गोल बहुत छोटा रखना है अभी के लिए। हमें बस फोकस करके देखना है कितना टाइम लगेगा बच्चे को उस पे समझने में, तब हमें पता चलेगा कि अगला नेक्स्ट स्टेप हम क्या लें। मैम ऑल्सो आई हैव वन क्वेश्चन हियर दैट मैम जैसे व्यान अगर कोई चीज मांग रहा है, ही इज स्पीकिंग द राइट वर्ड फॉर इट, फॉर एन एग्जांपल इफ ही इज आस्किंग फॉर स्क्रीन टाइम एंड ही सेइंग दे दे फॉर दैट, ओके, तो मैम मुझे वो जिद पूरी नहीं करनी, तो वो उसका दे दे, मतलब कहा तो उसने सही वर्ड है, लेकिन उसको फिर कैसे मतलब टैकल करूं? हमेशा आपको उसको, आप अगर उसने पूछा है तो ऑब्वियसली आपको उसको देना पड़ेगा। ओके, पर आप उसके लिए एक टाइम सेट कर दोगे कि मम्मा आपको देगी, 1 मिनट के लिए देगी, 1 मिनट के बाद मम्मा काउंट ऑफ 5 पे वापस ले लेगी। तो आपने आपका बात भी रखा है और आपने काउंट डाउन भी उसको दिया है। ठीक है, आपके ऊपर है, आप 1 मिनट देना चाहते हो, 2 मिनट्स देना चाहते हो, आप दे सकते हो। ठीक है, आपने दे दिया, उसके बाद आप उससे काउंट डाउन करके ले लेना है। तो आपने उसको एंकरेज भी कर दिया, तो उसको लगेगा एटलीस्ट मुझे 2 मिनट के लिए मिल तो रहा है, मैं पूछूंगा तो मुझे मिल तो रहा है। तो वो पूछने का एंकरेजमेंट भी मिल गया, और आपका बात भी ये हो गया कि करेक्टली इस टाइम के बाद मैं ले रही हूँ, तो वो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन बेस्ड हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया। आप समझ रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा सेशन में भी यही होता है, जब मैं देती हूँ काउंट डाउन करके वापस ले लेती हूँ, यस मैम। है ना। तो उसने पूछा मुझसे तो मैंने दे दिया, तो एंकरेजमेंट मिल गया, तो मैं दोबारा दोबारा पूछ सकता हूँ। बिना पूछे तो मेरे को वो 1-2 मिनट भी नहीं मिलता है ना, तो इससे अच्छा तो पूछूं, मुझे वो 2 मिनट तो मिल ही जाता है। यस मैम, यू राइट। लाइक जय के केस में भी लाइक वो कुछ अगर उसको राइम्स देखनी है, वो बहुत देर से देख रहा है, अगर मैं उसको एकदम से ले लूंगी तो वो बहुत रोता है। अगर मैं उसको काउंट, मतलब वही काउंट ऑफ 5 पे मम्मा लेगी, वो प्यार से मुझे वापस कर देता है। मतलब वही वो अपना उसको समझ में आ गया कि हाँ ये मेरा प्रोसेसिंग टाइम है, मुझे वापस देना है। आपसे कोई छीन लेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, नो दे दो, अच्छा नहीं यस मैम। लगेगा। पर किसी ने आपकी ब्रेन में ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया कि मेरे पास है, पर काउंट डाउन 5 तक है, तो वो 5 सेकेंड के लिए तो वो मेरे लिए, मेरे पास है ना, तो मैं उसको पूरा यूज करूं, यस मैम। है ना। उसके बाद दे दिया। काउंट डाउन से बच्चे बहुत ज्यादा ही काम डाउन हो जाते हैं, जैसे वो यस सीखने मैम। लगते हैं। भले ही बहुत ही मतलब
बहुत प्यारी चीज हो, मतलब वो देना ही नहीं है तब भी वो उसको दे देता है प्यार से मुझे। क्योंकि उसको पता है कि वापस मुझे प्रोसेसिंग मिलेगा, टाइम। मुझे वापस मिलेगा। एक कॉन्फिडेंट, एक रैपो बन जाती है ना कि वापस हम्म। मिलेगा। जैसे आपने देखा हाँ। होगा यस स्कूल मैम। में भी पहले वो नहीं देते थे, अभी उनका रैपो बन गया है, धीरे धीरे बन रहा है, तो वो ट्रस्ट करके दे देते हैं कि चलो दोबारा मैं कुछ करूंगा या मुझे कुछ चाहिए होगा, मैं पूछूंगा तो मुझे मिल जाएगा। यस मैम, यही हम तो ले मैम हमें बिल्ड लेते हुए। करना है। हम्म। कम्युनिकेशन होता क्या है? एक ट्रस्ट हम्म। होता है कि मैं पूछ सकता हूँ तो मुझे वो मिल सकता है। वही ट्रस्ट को आप बना रहे हो, स्ट्रक्चर कर रहे हो। जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर हो जाएगा आप उसको जनरलाइज कर दोगे, है ना। उसके यस साथ मैम। साथ आप घर पे भी जनरलाइजेशन करा ही रहे हो कि तुम पूछ रहे हो तो मुझे मिल रहा है। यस मैम, और मैम लेते हुए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हाँ मम्मा आपको, आप ये एक्टिविटी करोगे फिर आपको फिर दे देगी, तो उसको हम्म। एक थोड़ा सा आ जाता है कि हाँ मम्मा देगी मुझे। हाँ। ओके। एंड व्हाट अबाउट प्री लिंग्विस्टिक? आप लोगों ने, मैंने जो बोला था वो आपने नोट किया कि कितनी देर की आई कांटेक्ट है, सिटिंग कितनी देर की है? क्या आप लोगों ने ट्रैक बनाया? हाँ, मेरा बना हुआ है मैम। ओके। अब अगर बच्चे का 2 से 3 मिनट का सेशन मतलब सिटिंग चल रहा है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 3 से 4 मिनट, ना ही 5 to 10 मिनट्स। ओके, 1 मिनट का इंक्रीज होगा, 1 मिनट का इंक्रीज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। हमेशा 1 मिनट का टारगेट एक्स्ट्रा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैम यहाँ पे ना मुझे ये पूछना है कि फॉर एग्जांपल व्यान एट टाइम्स आपने देखा है इसकी सिटिंग कंपैरेटिवली कम है, हाउएवर इट्स इम्प्रूविंग, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है। कल जैसे मैं इसको मैम रात को पढ़ा रही थी तो मैं इसको मैम वो प्री राइटिंग की एक्सरसाइजेस भी करवा रही थी, प्लस मैम स्क्रिबलिंग वगैरह फ्री टाइम दिया, तो मैम ओके। मे बी ही वाज एंजॉयिंग इट। तो ये काफी देर मैम इसने मतलब पूरा पेज वो करा और काफी देर बैठा। मैम इस ओके। टाइम में मैं क्या कंसिडर करूं, मतलब वो जो भागने वाला टाइम को मैं नोटिस करके चलूं या मैं ज्यादा वाले टाइम को, मतलब जैसे आप कह रहे हैं एक रिकॉर्ड बनाइए, सो व्हाट आउट ऑफ ऑल दोज टाइम्स दैट ही हैज सैट डिफरेंट मिनट्स के लिए, कौन सा वाला मैं पिक करूं, मतलब कि ये इसका टाइम है कि अभी इतनी देर बैठ रहा है। इवन टाइम जोन पे भी फर्क पड़ता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में भी फर्क पड़ता है। बच्चे रात तक बहुत थक जाते हैं तो रात को बैठते हैं, तो वो आप जितने भी देर बैठाओ वो बैठ जाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं। इसके बाद उनके पास एनर्जी नहीं होती है कि वो भाग दौड़ करें, वो बस बैठ जाते हैं कि जो कराना है कराओ। ओके, कभी कभार वो ग्रीन जोन पे भी होते हैं, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आज बहुत खुश हूं तो मैं कर लूंगा, या बहुत अच्छी नींद मिल गई मुझे दोपहर को तो आई एम वेरी हैप्पी तो मैं कर लूंगा। आपको ये चीज तब देखना है कि उनके एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट आप करा रहे हो, आपको पता है इस पे वो बैठेगा, ठीक है, आप उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो वो भी कितनी देर तक बैठ सकता है, वो उनका एक्चुअल सिटिंग टाइम होता है। जो पसंद नहीं होता है उस पे तो कोई भी नहीं बैठता है, आप भी नहीं बैठोगे, मैं भी नहीं बैठूंगी, है ना। तो वो चीज देखना है, उनकी पसंदीदा एक्टिविटी आप उनको दे रहे हो तो वो कितनी देर तक बैठ सकते हैं। मतलब पूरा कंप्लीट होने तक आप एक गेम सेट कर रहे हो, आप एक गेम खेल रहे हो, या हो सकता है क्ले में बना रहे हो या बबल्स हो सकता है, कितनी देर बैठेंगे, वो उनका सिटिंग है, ठीक है। उनके एक्टिविटी ठीक ऑफ मैम। इंटरेस्ट पे वो उनका सिटिंग हो सकता है ना। तो आपने नोट किया होगा बयान का क्या होगा। मैम लाइक ही एंजॉयज वाटर एक्टिविटीज अ लॉट, तो हाँ। मैं वो कराती हूँ तो ये काफी देर बैठ जाता है हाँ, वो और उसका पजल्स एक्चुअल भी सिटिंग एंजॉय है। करने लगा है। राइट, जैसे और मैम कल मैंने ये नोटिस करा कि मे बी ही हैज बीन वाचिंग एबीसीडी ऑन स्क्रीन एंड सुन ही रहे हैं बचपन से राइम्स वगैरह। सो कल मैं इसको मैम एबीसीडी एंड नंबर्स की मैंने मैचिंग कराई एंड टू माय सरप्राइज ही डिड इट वेरी वेल, तो उसके लिए भी काफी देर बैठा। तो मतलब कल रात को इसका काफी ज्यादा वो ग्रीन टाइम और जो रेड जोन मैम ने बताया हुआ था वो वाला मुझे कल समझ में आया कि बच्चा का ग्रीन जोन और रेड जोन का भी क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। यस। तो वो उसका एक्चुअल सिटिंग सिटिंग टॉलरेंस है, उतना ही सिटिंग वो कर सकता है। ओके, एंड हमेशा सिटिंग इंटरेस्ट के बेस पे भी चलता है, उसी इंटरेस्ट को रख के हम सिटिंग को और आगे बढ़ाते हैं। ओके, आपने हाफ गेम कराया, फिर बीच में आपका गेम इंट्रोड्यूस किया, फिर एंड में आप उसी का गेम इंट्रोड्यूस किए,
तो उससे क्या होता है, उसका गेम चल रहा था, बीच में आपका चला, फिर उनका गेम चला, बीच में आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा कर दिया। आप समझ रहे हो कैसे बढ़ाना है सिटिंग? यस मैम। ओके। आपने वाटर गेम किया, फिर आपने बोला ओके फटाफट इस पजल पीस को इसमें डाल देंगे, बिल्कुल फास्ट आपने डाल दिया। वाओ, आपने काऊ मूमू को डाल दिया, आपने एनकरेज भी कर दिया, आपने मॉडल भी कर दिया, आपने लैंग्वेज को पुश भी कर दिया, उसके बाद आपने दोबारा पानी दे दिया। ठीक है, बीच में आपका 1 मिनट मिल गया, इससे पहले वाला 2 मिनट्स चल रहा था और बाद वाला 2 मिनट्स भी चलेगा। तो कितना हो गया, पहले 4 मिनट था, अभी 5 मिनट का सिटिंग हो गया। वो आपका ही गेन है ना? और सबसे बड़ा रीइंफोर्समेंट हमारे लिए क्या है कि बच्चा बैठ गया। एग्जैक्टली मैम। ओके, तो ऐसे ही प्लान करना है आपको। और आप कोई नई चीज सिखाते हो तो कैसे सिखाते हो? जैसे उसको ऑलरेडी 2-3 वेजिटेबल्स पता है, चलो फॉर एग्जाम्पल आपको एक नया सिखाना है, आप कैसे सिखाओगे, कैसे प्लान करते हो? मैम व्यान के केस में तो मॉडलिंग मेथड इज हेल्पिंग अ लॉट। मॉडलिंग इज समथिंग वी ऑल डू इट। हम भी जो चीज देखते हैं वही चीज तो हम सीख पाते हैं ना, सिंपल है। एग्जैक्टली मैम। हमें कोई लाके नया फोन देगा तो हम पहले मैनुअल देखते हैं, या तो आजकल बहुत कॉमन है हम यूट्यूब पे देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स, है ना? कोई भी गैजेट हुआ, सबकी ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस होती है, तो हम सीधा देख लेते हैं। लैपटॉप पे कोई प्रॉब्लम होता है, हम यूट्यूब पे देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। जब हमारे हाथ से बियॉन्ड होता है तभी हम सेंटर जाते हैं। वैसे तो आजकल सब सेल्फ हेल्पिंग हो गए हैं, है ना, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है। तो वैसे ही बच्चे भी होते हैं, पहले वो देख लेते हैं, अब मम्मा ने सिखाया तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। जब मुझसे नहीं हो रहा है तो या तो वो हेल्प मांगेंगे, या तो वो उस चीज को छोड़ के चले जाएंगे। यही दो पॉसिबिलिटी होगी ना। तो आप उनको मौका दोगे कि वो एक्सप्लोर करें। जब आपको लगता है कि अब नहीं हो रहा है तो आप जाके उनको मदद करेंगे। ओके चलो ये ऐसा है, पहले उनको मौका तो देंगे ना कि एक्सप्लोर करें, अपने तरीके से करके देखें। इस साइड से नहीं जा रहा है तो इस साइड से जाएगा क्या, पजल के पीस लगा के तो देखें। हम उनको और मैम टाइम ही नहीं इंफॉर्मेशन दे भी दे रहे। प्रोवाइड करने से पहले हमें मिसकंसेप्शन थी कि हेल्प नहीं होती, बच्चे को समझ नहीं आता। बट नाउ आई फील इफ आई इन्फॉर्म हिम समथिंग, तो ये ग्रेजुअली उसको प्रोसेस करके ना ही इज मोर स्टेबल नाउ, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, वेदर इट इन टर्म्स ऑफ गोइंग आउट। फॉर एग्जाम्पल कल थोड़ा सा मुझे आई वॉज अंडर द वेदर, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करा दैट आई एम स्लीपिंग इन द अदर रूम, आप पापा के साथ सो जाओ। तो वैसे ही स्लीप्स विद मी एंड ही इज वेरी वेरी हैबिचुअल ऑफ स्लीपिंग विद मी ओनली, but ओके he was absolutely fine. So now I feel information providing to kids is very helpful, and of course activities वगैरह में तो मैम modeling is helping a lot. वेरी गुड। ओके, एंड जिनकी ऑलरेडी सेट है कि गोल मुझे यही यही था, यही करना है, तो आप लोगों ने कैसा एक्टिविटी प्लान किया है? आपका गोल होगा ना, जैसे अभी हो सकता है मेरा मेरा बेटा 1 वर्ड में बात कर रहा है, ठीक है, 1 वर्ड उसका बिल्कुल करेक्टली स्पॉन्टेनियसली चलता है। मैं सो के उठा के भी पूछूं आइसक्रीम पे, उसको आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, वो 1 वर्ड स्पॉन्टेनियस है। ओके, जो उसको चाहिए वो उसको पूछना ही है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, आप उसको कैसे एनकरेज करोगे कि और उस पे क्या वर्ड्स डालोगे, कैसे मोटिवेट करोगे कि वो आइसक्रीम से ऊपर भी कुछ पूछे, या आप कैसे पूछोगे कि वो आइसक्रीम से ऊपर भी कुछ बात करें? हाँ बोलिए सर्विका मम्मा। मैम इसके लिए कोई एक्टिविटी तो नहीं किया है, बस वही जो डे टू डे हमारा टॉक टाइम होता है, हम्म बस उसी को फोकस कर रहे हैं, हम्म अलग से तो कुछ नहीं कर रहे। एंड इसके लिए मैंने लर्निंग वाले पे भी डाला था कि सपोज देवांशी का लेवल ये है और मुझे उसे 1 वर्ड या 2 वर्ड्स पे लाना है, तो ये मैंने आपसे पहले भी बोला था कि लाइक कि एक बच्चे को एक दिन में कितना खींच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर उसको प्रेशर डाला कि नहीं बोलो नहीं बोलो तो फिर वो चिढ़ती है और फिर वो कुछ भी नहीं करती। तो जैसे देवांशी का जो लेवल है ना, तो उसमें जितने दिन ये चल रहा है क्लास या जो भी है, तो एक दिन में उसको कितने टाइम के लिए, सपोज वो ग्रीन जोन, वो मेरा डिसीजन होगा कि ये ग्रीन जोन में रहती है, बट उसको उस टारगेट के लिए
कौन सा एक्टिविटी परफेक्ट रहेगा फॉर द स्पीच, बिकॉज देवांशी का जो है उसका थोड़ा सा है कि इंस्ट्रक्शन तो है, बट उसका है कि वो थोड़ी सी पैनिक हो जाती है, हाइपर है, तो उस हिसाब से उसकी स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए क्या एक्टिविटी, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज मैंने बोला था आपसे, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक सेशन अगर प्लान शेयर करना है, तो आप उसमें से ना 4-5 चीजें ऐड करेंगे। फर्स्ट होगा इमिटेशन, वोकलाइजेशन। इमिटेशन ऐड करना है। इमिटेशन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपने ऐड किया उसमें से एक लेबलिंग, ठीक है। पॉइंटिंग हो सकता है, लेबलिंग हो सकता है। ओके, पॉइंटिंग के साथ साथ हम लेबलिंग भी करा सकते हैं। लेबलिंग क्या होता है, मतलब मुझे उतना ना मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये लेबलिंग क्या है। लेबलिंग मतलब जैसे कि आपने राइम्स करा दिया, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज आपने करा दिया, और आपने बिल्कुल एक बॉडी चार्ट के सामने कराया, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, ठीक है। फिर आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज। फिर आपने तुरंत बोला, देवांशी नोज का है, इस बेबी का नोज का है, चलो आके पॉइंट करो, ठीक है। और आपने वेट किया, ठीक है। उसने वो फिर वेट कर रही है, हो सकता है वो अभी भी राइम मोड पे है, तो आपने फिर से कराया, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, ओके। फिर आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड, चलो इधर पॉइंट करेंगे, नोज कहाँ है, नोज पॉइंट करो, ठीक है। तो वो आ गई और आपके साथ साथ नोज पॉइंट किया, या नहीं किया तो आपने आके नोज पॉइंट करा दिया, ठीक है। आपने राइम्स के साथ ही इंट्रोड्यूस कराया, राइम के साथ ही आपने पॉइंटिंग भी कराया। फिर आपने पॉइंट करा के, आप हो सकता है आप उससे पूछ भी सकते हैं तब, आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड, फिर क्या होता है। अगर वो अभी भी राइम्स मोड पे है तो वो डेफिनेटली आंसर करेगी नोज, ठीक है। आप धीरे, जैसे हाँ, आप धीरे धीरे क्या करोगे, उसके बाद आपने आपने उसको क्या किया, आपने उसको वोकलाइजेशन पे करा दिया, ठीक है। नाउ अभी हम कहेंगे आ, या क्लैप योर हैंड्स, या आ करेंगे, ई करेंगे, तुरंत नहीं आएगा, तुरंत बच्चे एडजस्ट नहीं होंगे। आप उसको सिर्फ एक बार कराइए, पर ये सारी चीजें एक ही बार कराइए, काफी है। एक बार भी अगर मोटिवेट होके करा रहे हैं तो 1 डे के लिए वो वाला सेशन भी बहुत हेल्पफुल है। रेदर देन आपने 2-3 बार कराया और सेकेंड बार वो चिढ़ गई, तो फर्स्ट बार का इफेक्ट ही नहीं रह जाएगा। जैसा आपने बोला कि वो चिढ़ जाती है, वो भाग जाती है, उसके बाद उसका पूरा दिन खराब हो जाता है ना। तो आप वो एक बार ही कराओगे, एक बार ही, एक ही सेशन कराना है, एक बार ही कराना है। बाकी सारे टाइम आप मोटिवेट करने में लगे रहे, स्टिमुलेट कर रहे हैं, दैट्स इट। आप 1 टाइम ही कराओगे। एक पजल करा लिया, एक बार आपने उसके साथ मैचिंग करा लिया, उसको मैचिंग पसंद है, सॉर्टिंग पसंद है, आपने करा लिया, और बस उसके साथ साथ आप एक ही बार लैंग्वेज कराओ। तो सब होने के बाद आप बोलोगे, आपने अपना कम्युनिकेशन बोर्ड लेके बोला, अब तुम बताओ इसमें से तुम्हें क्या चाहिए, मम्मा देगी। मैम जैसे अब एक चीज है कि ये अपने आप को राइम्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है, और ये चीज आप लोगों ने EIP वाले में कराया था तो वो मैंने इसके साथ वो हेल्पफुल रहा। बट ये और टीवी का स्क्रीन के सामने इसको जब मैं खड़ा करती हूँ ना, और कहा कि इसमें ट्री कहाँ है, झूले पे कौन झूल रहा है, गर्ल झूल रही है, बॉय झूल रही है, तो ये चीज ये करती है और ये काफी अच्छे से करती है। और ये मैं अगर इस चीज को, इस एक्टिविटी को मैं खींचू ना, तो ये लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक ये चली जाती है, 1 घंटा भी ये रहेगी इसके इंटरेस्ट का है तो। बट मुझे डॉक्टर ने बताया कि वो इसके आंखों पे इफेक्ट करेगा, कि ये चीज नहीं करानी, कि ये चीज नहीं करानी, क्योंकि टीवी का कंट्रास्ट जो है वो काफी हाई रहता है और वो नहीं कर पाएगा। बट फिर मैंने उसको पिक्चर पे लिया तो फिर ये भाग गई। और उस टाइम मैंने कराया था तो इसका लैंग्वेज जो था ना वो काफी इम्प्रूव हुआ था, कि लड़की कहाँ है, लड़की कौन सी भाग रही है, वो चीज किया। क्योंकि उस टाइम पे है अभी कि इसका ऑनलाइन क्लास भी है, फिर वो टीवी पे 1 घंटे देखना, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का वंस इन अ डे इसका स्क्रीन टाइम भी होता है। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देने से होगा क्या, कि ये आंखों पे प्रेशर डालेगी। और फिर और वो इसका हो भी गया था कि वो आईज ना छोटी छोटी दबा दबा के करती थी, तो माइट भी कि वो आंखों पे प्रेशर था। और वो बिल्कुल टीवी के सामने खड़े होकर के या फिर लैपटॉप के सामने बैठा करके, लैपटॉप में ये नहीं करती बट टीवी बड़ा स्क्रीन होता है ना, तो उसमें ये करती है। तो इसका सेकेंडरी ऑप्शन क्या कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, देवांशी को वो हैबिटेड हो गया था, है एग्जैक्टली ना,
हैबिटेड था उसका, ये नहीं था वो। हो सकता है टीवी में भी उसको इंटरेस्ट जगने में पहले बहुत दिन लगाओ, 1-2 दिन तो लगा ही होगा, या उसको लगा होगा कि ये बहुत कलरफुल है, अट्रैक्ट हुई होगी, वो है ना। बहुत attract हो जाती है। सपोज एक बार सनराइज में भी एक ट्री था, हाँ वो जो मोनिका मैम ने करवाया था, तो वो ट्री वो देखने आई और घर में सेम वैसा बनाया था। उसके क्रिसमस के टाइम पे मैंने उसको पेपर्स दिए थे और वो कटिंग, तो उसने खुद बना करके ट्री और वो बार बार ये कर रही थी, रिपीट कर रही थी कि ये ट्री है, ये ट्री है। तो इसको बहुत बड़ा कैनवास या उस टाइप से लेके करने पे, जो कि पॉसिबल नहीं होता हर बार कि मैं उतना बड़ा पिक्चर निकालूं या कुछ प्रिंट आउट। नहीं, आप उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर, आप बड़ा पिक्चर नहीं निकाल सकते हैं, पर आप A4 शीट्स में तो निकाल ही सकते हैं ना। आपको वो इंटरेस्ट जगाना होता है, आप ट्राई करके देखो, इंटरेस्ट जगाना होता है। आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आप टीवी करा रहे हो, ठीक है, आपने 5 मिनट्स कराया, 5 मिनट्स के बाद टीवी बंद कर दिया, और आप इसको 1-2 मिनट कराइए, उसके बाद आप सेशन ही कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। एक सेशन मैम 45 मिनट्स का होगा या फिर नहीं, डिपेंड करता है, आपको लगता है इसके बाद वो नहीं बैठेगी या वो हल्का सा भी हिलने लग गई, तो आप तुरंत उसी टाइम सेशन को, जो भी कर रही है उस सेशन को फिनिश करा के आप उसको बाय बाय कर दीजिए। ओके, अभी देवांशी खेल सकती है, ठीक है। पहला ये है कि वो मम्मी को पूरा ट्रस्ट करे, कि वो आके अपने आप बैठ जाए सेशन के लिए। वो तो मैम उसका जैसे है, जैसे अब मैं कहीं भी रहती है ना, घर के कोने पे, मैंने बोला देवांश काउंट 5, मैं ऐसे भी गिनती रहूं ना, देवांश के साथ भी खेलती हूँ, तो वो 5वें पे आके खड़ी हो जाती है। हाँ, क्योंकि उसको पता रहता है ना मम्मा कराएगी, तो आपको भी उसका ट्रस्ट बिल्कुल और आगे लेके जाना है। आपने उतना ही कराया जितना उसका इंटरेस्ट है, उसके बाद आपने कहा चलो ठीक है, आप देवांशी जा सकती है। अब उसके बाद आप उसके बाद उसको कम्युनिकेशन बोर्ड दे देंगे कि आप बताओ देवांशी को क्या चाहिए इसमें से, ठीक है। फिर आपने बोला पॉइंट करा के कि अच्छा ये आपने नाम लिया, और उसके बाद आपने बोला कैसे बोलते हैं, दे दो, क्योंकि अभी भी वो खुशी में है कि ये खत्म हो गया है, आपने बाय बाय बोल दिया है, तो वो 1 सेकेंड के लिए आपको, ये 10 सेकेंड के लिए आपको टाइम देगी, तो उस टाइम को आपको यूज करके मॉडलिंग कराना है कि हम कैसे बोलेंगे, दे दो, ओके। और हमेशा ये नहीं बोलना है बोलो दे दो, बोलो दे दो, आप बस यहाँ पॉइंट करोगे और बोलोगे दे दो। आपको मेरी तरफ देखना है कि कैसे बोलना है, दे दो, एंड दैट्स इट। आपने उस चीज को रखा होगा तो आप तुरंत उसको उठा के दे देंगे। जैसे उसको मखाना बहुत पसंद है, उसने मखाने पे पॉइंट किया, फिर आपने बोलवाया दे दो, और जैसे ही बोल दिया आपने तुरंत उसको उठा के दे दिया, ठीक है। कम्युनिकेशन का भी आपने मॉडल कर दिया। उसके बाद वो मखाने पे बैठ के खा रही है, आप उसको बोल रहे हो कि मखाने खा रहे हो, आपने बहुत अच्छा सेशन किया, आपका टाइम, ठीक है, मम्मा ने आपको फ्री टाइम दे दिया, हो गया। जो सेशन हुआ है वो भले 15 मिनट का हो या 20 मिनट का हो, वो इफेक्टिव था, ठीक है। बस ऐसे ही कराना है, इफेक्टिव था। आप देखो, आप पहले 1 सेशन इन अ डे करके देखो, फिर जैसे जैसे आपको लगेगा कि वो बहुत अच्छी तरीके से बैठ रही है, ठीक है, उसके बाद आप दूसरा सेशन भी आप प्लान कर सकते हो, जब वो सो के उठ गई है आराम से, अभी वो बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है, उसके बाद आप करा सकते हो। हाँ जय मम्मा, आपको कुछ मैम पूछना था? आई हैव अ क्वेश्चन। मैम लाइक जय, आपने देखा है कि पॉइंटिंग दे दो विद एक्शंस वो कर रहा है, बट मैम वो अभी भी स्टिल ही इज नॉन वर्बल, वो नहीं बोलता है कि दे दो। मैम लाइक टिल व्हाट पॉइंट शुड आई वेट कि भी मतलब मैं आगे कैसे उसको मतलब उसको प्रोसीड करूं कि वो बोलना स्टार्ट करे? एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है जो कि भी हाँ अभी क्या हुआ है, अभी हम जय के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहे हैं, दे दो सिर्फ कम्युनिकेशन पे है, पर हमारा फोकस ये है कि हम उसकी वोकलाइजेशन पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। यस मैम जैसे मैंने उसको बोला था जैसे उसकी कुछ इश्यूज है, जैसे लिप बाइटिंग है, ठीक है, उस सबको हमें धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। आप लिप बाइटिंग को हटाते ही आप उसके साथ प ब स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने पहले भी बताया था कि प एंड ब इनिशियल साउंड्स होता है, सिलेबल्स होता है जो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे के साथ, क्योंकि वो दिख सकता है कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं, पा पा मा, ये सब दिखता है ना। बाकी कोई भी साउंड वो दिखता नहीं है, तो उसको इंट्रोड्यूस कराना मुश्किल है। पहले बच्चा देखेगा कैसे प्रोड्यूस होता है, तभी वो रिस्पॉन्ड करेगा।
तो अभी हमारा फोकस सिर्फ आ, ई एंड ऊ पे ही है। जैसे अभी वो Yes, आ ma'am. करता है, जैसे मैंने आपको बोला था ग्लॉटल से करता है, तो अभी आप ई और ऊ इंट्रोड्यूस कराना है। और आ भी अगर आपकी कमांड पे करे तो वो और अच्छा है। ठीक Yes, है, ma'am. बस मैम उस पे जैसे आप लाइक फोकस कीजिए। सिर्फ कल रात को मैं बोल इसको इमिटेशंस करवा रही थी। ही इज डूइंग लाइक विदाउट एनी साउंड। ऊ उसने कल फर्स्ट टाइम मुझे देख के इसने ऊ इमिटेट किया मुझे देख करके। ठीक है मैम। और आपने वो मुझे जैम का भी कहा था, आई एम डूइंग दिस, पर मैम वो आपने कहा था कि वो लिप्स मतलब चिपका ले अपने, वो चीज ये नहीं कर रहा। द मोमेंट आई अप्लाई द जैम ही लिक्स इट, पूरा चाट लेता है फटाफट उसको, नहीं, तो आपको वो उसको लगा छोड़ के ही नहीं तुरंत रहे। ऐसे पकड़ लेना है। मैम वो एक्चुअली इतना स्लिपरी हो रहा है ना, वो पकड़ ही नहीं पाती हूँ मैं। वो उतने में तो वो चाट लेता है उसको, क्योंकि वो थोड़ा मीठे का उसको अच्छा कि लगता आप है क्या खाना। करते होगे, जैम लगाया, आपने ढक्कन बंद किया, तब तक वो चाट लेता है मैं है वो ना? इतना सेकंड भी नहीं देता, वो तो फ्रैक्शंस मतलब विद इन अ फ्रैक्शन वो चाट चूट के खत्म कर या लेता है। आप स्पून होता है, स्पून के पीछे लगा के आप उससे पकड़वा दीजिए। स्पून यहाँ पे लगाया और बंद कर दीजिए। स्पून से ठीक है निकालते मैम। तब तो आपके हाथ गंदा नहीं होगा और आप फास्ट भी होगे, तो जल्दी हो जाएगा। मैम वो कर रहा था पर ही वाज डूइंग लाइक दिस, दबा आप रहा था अपने लिप्स, पर वो बीच में अपनी टंग ला रहा था, वो तो लिप्स नहीं आदत दबा है ना रहा था। उसको, तो आप हल्का सा टंग पुश कीजिए कि हम अभी सिर्फ स्पून को इसके बीच में ला रहे हैं। दैट्स इट जय। ओके, देखो मम्मा कैसे रखी, आप रख के तो दिखाएंगे ना पहले। ओके, हाँ उसके मैंने बाद मैम उसको मॉडलिंग भी मैंने इसको अपने लिप्स पे भी लगा के उसको धीरे धीरे दिखाया। करेगा। हाँ। अब वो जैसे समझ जाएगा, उसके लिए जय के लिए हार्ड नहीं होगा, वो करेगा। ठीक है, अभी उसकी आदत तभी है जब उसके साथ एक्टिविटी होता है, ही बाइट्स इट, है ना? क्योंकि वो खो जाता है उस एक्टिविटी में, मुझे करना है, तो ही बाइट्स इट। ओके, तो धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, अभिषेक सिंह आपने रेस किया है, हाँ बोलिए। मैम मैं आव्या की मॉम बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैम आव्या के केस में ना लाइक हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं और ये सब है, तो वो सारे कुछ करेक्टली पॉइंट करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट मैम वो वर्ड्स पे बहुत जल्दी आ नहीं रही। ऐसा नहीं है कि वर्ड्स नहीं है उसके पास, बट मतलब इतना समझ आता है। जैसे मेरे पास बॉडी पार्ट्स के भी फ्लैश कार्ड्स हैं, तो मैं पूरे जमीन पर उसको स्कैटर कर देती हूँ। तो जो भी मैं बोलती हूँ कि आव्या नोज लेके आइए, तो वो या नोज मैंने वीडियो देखा है। लेके हाँ, फिर वो अपना नोज भी पॉइंट करके दिखाएगी कि हाँ मेरा यहाँ है, एल्बो यहाँ है। बट मैम वो वर्ड पे जहाँ प्रेशर डालना शुरू करते हैं ना, कुछ कुछ वर्ड्स वो तुरंत ले लेती है, लेकिन और सब पे वो बहुत मतलब वो रोना शुरू हो जाता है, या फिर भागना कि नहीं नहीं बोलना है, मतलब इस। Avya is very small. यस She's मैम, आप very small baby. Okay, so try to keep it only 10 minute session, not more than that. ओके, एंड आपने वो जो स्पून वाला एक्टिविटी कराया, बीट्स में स्पून से निकाल के, ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि कमांड पे कराएं। वो कर तो रही है, पर आप कमांड पे कराएंगे। आप एक बीट हाथ पे रखेंगे और बोलेंगे कि ब्लू ब्लू। ब्लू। ओके, ब्लू सिर्फ निकालना है आव्या, ब्लू। ओके, तो वो देख भी रही है कौन सा कलर निकालना है, ब्लू। राइट। ओके, कैसे बोलेंगे, बब्बा ब्लू निकाल दो। आपने उसको मोटिवेट भी कर दिया। ठीक है, आप क्या करते हो, स्पून दे देते हैं उसको, बस निकाल के डालना होता है। वहां पे लैंग्वेज का काम नहीं आ रहा है, वहां पे वो सॉर्टिंग कर रही है। वेरी गुड, शी इज डूइंग ब्यूटिफुली। इसलिए मैंने डाला भी था आपके साथ ग्रुप पे कि आपको फोकस करना है, कमांड पे करना है। सी, वो अभी अच्छे से कर रही है, पर हम उस चीज को तब कराते हैं जब बच्चे का सिटिंग ही नहीं होता है। शी इज डूइंग ब्यूटीफुली। अब आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। राइट ओके, मैम, वही मैम और अब आप हम लोग थोड़ा नोज करा रहे हो, माउथ करा रहे हो, कुछ फनी साउंड के साथ कराओ। न न न न नोस, है ना? राइट मैम। न न न न नोस कहाँ है, कैसे बोलते हैं, न न न न नोस, मम्मा कहाँ है, मम्मा को टच करो। आप सिंपल रख रहे हो, मम्मा को टच करो, एल्बो टच करो, नोज टच करो। इंटरेस्ट नहीं आएगा, बहुत स्मॉल बेबी है। यस मैम, अभी तो बहुत है ना? छोटा। राइट। हाँ, तो आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। और मैम एक और चीज था मैम, कि मैम आव्या का एक आदत हम देख रहे हैं ना, कुछ कुछ कलर्स पे वो फिक्स हो रही है, जैसे पर्पल कलर।
उस कलर के सामान को मतलब हम ऐसा देख पाते हैं कि एक सिंगल कलर का सामान एक जगह स्कैटर्ड, मतलब एक जगह पे है, या फिर उसको पर्पल कलर से थोड़ा फैसिनेशन है। तो मैम ऐसा हम लोग को करना है कि सारे पर्पल कलर्स को हटा दे ताकि वो फिक्सेशन नहीं हो एक कलर पे। नहीं, एक्चुअली आप उस पर्पल कलर को रीइंफोर्समेंट की तरह यूज कर सकते हैं ना। हाँ मैम, वो तो हम लोग यूज करते हैं मैम, जो उसको पर्पल कलर पसंद है तो लास्ट में वो दे दिया तो वो एक हो जाता है। लेकिन मैम जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ चीज अगर उसको जैसे ब्रश करने के बाद उसको ब्रश हाथ में चाहिए, तो वो ब्रश के लिए फिर रोना शुरू करती है कि नहीं हमको हाथ में चाहिए। वो 1 घंटे तक उसको रखेगी, फिर वो छोड़ देगी, कोई बात नहीं है, बट उस समय के लिए कुछ कुछ चीज से फिक्सेशन हो जाता है। तो मैम उसको इनकरेज करना है या फिर उसको वहीं पे नहीं, stop आप उसको ना काउंट डाउन के साथ, अच्छा आपको चाहिए आप ले लो, ठीक है, उसके बाद मम्मा काउंट ऑफ 10 तक करेगी, उसके बाद वापस दे देना। जब तक आपको लगेगा 2 दिन लग सकता है, 1 हफ्ता लग सकता है इसको समझने में, ठीक है, पर आप उसको हाथ में नहीं लोगे, जिस स्टैंड में वो डालती है उसी स्टैंड में वापस डलवा दोगे, वापस डलवाना, राइट, ठीक है, और वो वही है, उसके आंखों के सामने है, उसको कल दोबारा मिल जाएगा या रात को दोबारा मिल जाएगा जब वो दोबारा ब्रश करेगी, राइट मैम, है ना, उसके आंखों के सामने है। जब तक आपको लगेगा कि आप उसके हाथ से छीन रहे हो तब तक वो आपको नहीं देगी, ठीक है मैम, आप उसको बोलोगे ठीक है आपको ब्रश चाहिए, आप 1 मिनट तक ब्रश को लेके घूम सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम उसी के साथ एक्शन करा दीजिए, दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ, ओके, इसके बाद मम्मा काउंट ऑफ 10 करेगी, उसके बाद आप ब्रश वापस इसी में डाल दोगे, ठीक है, आपने हाथ पे नहीं मांगा, आपने बोला इस पे डाल दो, हाँ, ताकि वापस आपको वहीं से मिल जाए। हाँ, ठीक है, उसको एक मिल जाएगा ना कि कोई इंसान मुझसे छीन नहीं रहा है, पर बल्कि मुझे वो चीज उल्टा मिलेगा, इसी चीज पे रहेगा और वो मुझे उल्टा मिल जाएगा, वापस मिलेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, जी मैम, ओके, और एक्टिविटी थोड़ा सा और एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ज्यादा इंटोनेशन के साथ, क्योंकि जितनी छोटी बच्ची है उतना ज्यादा वो इंटोनेशन एक्सपेक्ट करेगी मम्मा से, राइट, ठीक है, इट्स ओके, कमांड पे आप कर सकते हैं, पर कमांडिंग भी अगर बहुत अच्छा हो तो और अच्छा है, मम्मा को प्लीज दे दो, ओके, या पर्पल दे दो या ब्लू दे दो, एक्साइटमेंट के साथ आपको करना है, ओके, इट शुड नॉट लुक लाइक कमांड, कमांड थेरेपिस्ट कराती है, मम्मा नहीं कराती है, देयर शुड बी अ डिफरेंस ना, कि हम जैसे कराते हैं, इवन हम भी स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं बच्चों के साथ, प्लीज दे दो, है ना, ताकि बच्चे हमारे साथ सेट हो जाएं, जब सेट हो जाते हैं देन हम अपने कमांड पे आते हैं, पर वो चीज कभी भी मम्मा के साथ नहीं हो सकती है ना, मम्मा कमांडिंग नहीं है, मम्मा मम्मा के साथ रैपो है, ठीक है, आपको ये चीज करना है। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ मैम मैं विवान और वेदांश की मम्मा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैम मेरा मेजर कंसर्न ये है कि आपने जैसा मुझे बताया था कि जो इनकी प्लान एक्टिविटी प्लान करेंगे तो उसमें हम स्लॉट वाइज लेंगे, जैसे कि कभी हम कुछ एक्टिविटी बेस्ड करवा दिए या फिर कभी एनिमल साउंड हुआ, फैमिली पिक्चर्स, तो ऐसे तो मैम रिसेप्टिव में मुझे उनका उतना कुछ इशू नहीं लग रहा है, लेकिन जब बात एक्सप्रेसिव की आ रही है ना, स्पेशली जब मैं कोई कमांड दे रही हूँ और अगर बोल रही हूँ तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है मेरे लिए मैम, कि ओरल लिमिटेशन कैसे सिखाएं उनको। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा है कि वो बाकी सारे टाइम साउंड निकालते हैं, डिमांड के टाइम साउंड नहीं निकालते हैं, जी मैम, जी, है ना, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि वो साउंड को समझ नहीं रहे, सिंपल है, ठीक है, आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एनिमल साउंड्स और व्हीकल के साउंड्स आप उसको दिखाइए कि साउंड मीनिंगफुल होता है, ओके ओके, और सिर्फ सिंपली आ ई एंड ऊ पे आप अभी फोकस करेंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ आप डिमांडिंग नहीं करेंगे, इस चीज पे आप फोकस करेंगे, बाकी सारी चीज पे आप साउंड्स दिखाएंगे कि हम कैसे बोलते हैं, पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि तुम बोलो, ठीक है, आपने बस कहा है कि आपने कार और बस ले लिया और आपने कहा देखो पीप पीप आ रही है और डिश, ओके, क्या हो गया, ये देखो गिर गया, या आपने सिर्फ कार को ऐसे चलाया और वो दीवार पे टकरा के जैसे वो गिरा आपने बोला, है ना, हाँ मैम, पीप पीप जा रहा है और वो डिश खत्म हो गया, ओके, ताकि बच्चे को लगे, वो पहले इम्प्रूव, वो आप उसको लगे तो सही कि ये मीनिंगफुल होता है, हम उनको समझा रहे हैं। और मैम ये दे दो वाली जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमेशा ड्रैग करके ले जाता है और कभी कभी मर्जी होती है तो देते बोलता भी है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं समझती हूँ कि नहीं ही बोलता है, ही यूज्ड टू ड्रैग मी, और वो वैसे ही अपने नीड बेस्ड जो भी है चीजें मांगता है मुझसे। तो ये कैसे इम्प्रूव किया ट्रैक जाएगा करता है मैम? आपको, ड्रैग करके मेरे हाथ को जो भी चीजें चाहिए वहां पे लेके जाता है कि अच्छा मुझे ये दो, और जब जैसे आपने मुझे बताया था कि पोजीशन देके दे दो बोलना है, तो वो इरिटेट होके रोने लगता है। आप एक ही बार बोलेंगे, बस बोल के खत्म कर देंगे। आप बोलेंगे हम पूछेंगे विवान, कैसे पूछेंगे? दे दो, और आपने उठा के दे दिया। जब तक अच्छा, आपको लग रहा है ओके कि आप पहले आपके दिल में काउंट ऑफ 5 कर लीजिए, उसके बाद एक बार बोलिए दे दो। और जैसे जैसे ये काउंट इंक्रीज हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि इसको टॉलरेंस है अभी, तो तब आप 2 बार बोल सकते हैं। अभी उसके पास टॉलरेंस नहीं है कि वो आपकी बात सुने, उसका अटेंशन बहुत कम है अभी, क्योंकि अभी उसको वो चाहिए ही चाहिए। जैसे उसको भरोसा हो जाएगा कि मम्मा मुझे दे ही देगी, तब वो टॉलरेंस भी बढ़ेगा। ओके ओके ठीक मैम, है? जी ठीक। तो आप सिर्फ आ ई एन ऊ पे और मीनिंगफुल साउंड्स पे फोकस करना है, और ज्यादा कुछ नहीं। बाकी सब कम्युनिकेशन नॉन वर्बल चल रहा है, अगर कम्युनिकेशन ही चल रहा है तो भी अच्छा है। हम पहले इसी चीज पे फोकस ज्यादा करते हैं। जैसे मैंने बोला था, गोल बहुत छोटा होना चाहिए। जी जी, मुझे याद है मैम, बोला था आपने। बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, तभी धीरे धीरे हम वो गोल खत्म हुआ, नेक्स्ट गोल पे हम फोकस कर सकते हैं। जितना ज्यादा गोल लगेगा, आपको लगेगा इतना लंबा है, नहीं, छोटा छोटा गोल लेके चलेंगे, फिर तो अपने आप चेन लिंक हो जाएगा। तो मीनिंग बेस्ड साउंड मैम सिर्फ मैं व्हीकल्स का लूं या एनिमल्स का भी ले लूं? एनिमल्स का भी ले सकते हैं, एनिमल्स का भी, है ना? आपने एक छोटा सा ग्रीन कलर का कार्ड पे आपने बोला, देखो, टेबल के ऊपर रख के बोला, देखो अभी कौन सा एनिमल आने वाला है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मुंह आ गया, है ना? मुंह आ गया। ओके, आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वो बच्चे सुन रहे हैं, आप बस करा रहे हो। आप बेड पे करा सकते हो, कभी कहीं पे भी करा सकते हो, यहाँ पे वो बैठे हैं। ठीक है मैम, इंटरेस्टिंग बना के उनको करवाना हाँ, होगा मुझे यही। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, रचिन के पापा। अच्छा, रचिन का मुझे ये बोलना था कि उसका फोनिक्स है ना, हाँ। तो वो कैसे आइडेंटिफाई, नहीं जो हम लेते कि लाइक कैट होगा तो को एट कैट, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। और दूसरा कि जो हम उसको सेंटेंस बोलते हैं ना, अगर अलग ये कि फॉर एग्जांपल एक पूरा सेंटेंस वो बोलता है, पर अगर वो 2-3 सेंटेंस साथ में बोलना होता है, तो वो कैसे उसका प्रैक्टिस ले? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने एक्चुअली बात किया था रचिन की मम्मा से। मैंने उनसे कहा भी था कि मैंने उनको एक्चुअली एक मटेरियल दिया था, मैंने कहा था उस पे आपको अभी करके देखना है, ठीक है? और मैंने उस पे कहा था, उस पे हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली उसका लेवल क्या है, क्या हम उसके लेवल से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस मैम, वो 22 पेज वाला ना, द वन दैट यू हैड सेंट मी। हाँ, Yes. सो मैम अनफॉर्चुनेटली अभी टाइम नहीं मैं निकाल पाई उसके लिए, वो करने के लिए। नो प्रॉब्लम, पर मैं बता रही हूँ कि जब हम वो करेंगे तब हमें पता चलेगा उसकी लैंग्वेज की लेवल। जो मैंने बाकियों को भेजा था वो कॉमन है, जो बेसिक है। अब मैं जो भेज रही हूँ वो लिटिल कॉम्प्लेक्स है, तो मैं उसको देखना चाहती हूँ कि रचिन का एज लेवल क्या जा रहा है, क्या हम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ना कि उसकी लेवल से हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें पता चलेगा एग्जैक्टली। अगर रचिन यहाँ होता, देन इट वुड हैव बीन फॉर मी कि मैं उससे असेस कर पाती। करेक्ट, मैं अपने तरीके से। नाउ आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ मम्मा, ठीक है? कि आप आराम से टाइम लीजिए, पर आप धीरे धीरे छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा पिक्चर्स का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, जब तक आप पूरा सॉर्ट नहीं कर लेते हो तब तक कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए ना। आप धीरे धीरे पिक्चर डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आप पिक्चर एक नॉर्मल एक पिक्चर लेंगे जिसपे पार्क का पिक्चर है, आप धीरे धीरे हर पिक्चर को सर्कल करके दिखाएंगे, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ताकि उसको पता चलेगा कि हम पिक्चर के हर चीज पे फोकस कर रहे हैं। ओके, वैसे देखा जाए तो मैम 2 पिक्चर्स का डिस्क्रिप्शन वो बताएगा, नहीं ऐसा नहीं है, बट देन यू हैव टू प्रोब हिम कि दीदी क्या कर रही है, भैया कहाँ है, स्लाइड पे कौन है, डॉगी है क्या नहीं है, दैट वे। ऐसे ही स्टार्ट होता है, ऐसे ही स्टार्ट होता है।
आपको क्या करना है, इसलिए मैंने बोला था आप सारे पिक्चर्स को ना सर्कल करोगे, उस पे सोचो कि 4 लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, उसने 2 अपने आप बोल दिया और जैसे ही बोला आपने सर्कल कर दिया, बाकी 2 आप सर्कल करोगे और पॉइंट करोगे। आपने ये 2 तो बताया ही नहीं, ये 2 तो रह गए हैं, है ना, इसको भी तो बताना होगा। तो आप बताओ ये क्या कर रहे हैं, ये फिर आप उसमें से पूछ सकते हो ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई थर्ड की तरफ भी देखेगा, वो देखता नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है, उसने वो 2 ही देखा है इसलिए उसने बताया। आप उससे थर्ड और फोर्थ पिक्चर भी दिखवा रहे हो, ठीक है। आप नेक्स्ट पिक्चर पे आप वेट करोगे, क्या वो थर्ड के तरफ ध्यान दे रहा है, बता रहे हैं, ओके, धीरे धीरे बढ़ेगा, ओके। इसलिए मैंने बोला था वो वाला आप करके देखो, फिर मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली उसकी क्या पोजीशन है, चलेगा, ठीक है। बिकॉज आई डोंट एग्री ऑन डूइंग सच थिंग विच इज बियॉन्ड देयर एज और बियॉन्ड देयर लेवल। इट्स नॉट अ पॉइंट ना, हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम यहाँ पे बच्चों को भगा नहीं रहे हैं, हम उनको बेटर लैंग्वेज देने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। एंड अनदर थिंग कि उसका वोकैबुलरी जो है दैट इज इन मराठी ऑल्सो एंड दैट इज इन इंग्लिश ऑल्सो, बट कभी कभी बोलते वक्त जैसे अभी बोला कि अभी दूध वाला आया है या अभी दूध वाला आला है, so it is a mix of 2 languages, so that is okay, acceptable, no problem unless it is intelligible, it is very good, okay. I think Pune, Mumbai, people use both language together na, it is very common, so it is not, हाँ, it is not a problem ना, ऐसे तो नहीं है completely मराठी use करते हैं पुणे में completely, they use both mixture also, they understand nicely। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होता है जैसे उसने एंड किया मराठी में, ठीक है, और एंडिंग वर्ड में यूजुअली लोग अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वो क्या बोलने जा रहा है, तो दैट्स नॉट अ इशू। पर वो जो मेन वर्ब और मेन जो नाउन यूज करता है वो क्लियरली यूज करता है, वी हैव टू एनकरेज, चलेगा, ठीक है। और आप इंट्रोड्यूस पिक्चर ऐसे लीजिए जिसपे सिर्फ 4 चीजें हो, 2 चीजें उसने अपने आप बोला, थर्ड और फोर्थ आप उसके सामने सर्कल कराओगे, ये 2 तो आपने बोला ही नहीं, आपको बोलना है, एनकरेज करना है, ठीक है। रचिन हम सारे चीज को पॉइंट करके देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप जब इंट्रोड्यूस करा रहे हो आप बोल सकते हो कि हम सारी चीजें देखेंगे, okay? पहले में आप बोल दोगे तो उसको कंफ्यूज रहेगा, जो देख रहा है वो भी अगले पिक्चर में नहीं देखेगा, पहले आप उसके पेस पे छोड़ेंगे, आप देखेंगे कितना पिक्चर वो अपने आप नोटिस करता है। करेक्ट। एंड हाउ डू वी टेक दिस टुवर्ड्स रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन? Reading and comprehension. Reading, has he started sight words? Sight words, हाँ, थोड़े बहुत, it, as, at, this, this, ये हुआ है। So like, he will do, pointing he will do, but आगे मतलब उसमें बढ़ना भी है, because reading is 0. Reading को कभी हमने टच किया ही नहीं है, this is our fault actually. But yeah, no, it's not a ये fault, हो सकता है उसको तब आपका सबसे ज्यादा फोकस आप कम्युनिकेशन और लैंग्वेज पे दे रहे थे, रीडिंग पे आपने ज्यादा ये नहीं दिया होगा क्योंकि तब वो ज्यादा डिमांडिंग नहीं हुआ होगा, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, उस पे जो मैंने आपको दिया है उस पे इवन बहुत चीजें मेंशन्ड है, जैसे रीडिंग के लिए भी मेंशन्ड है, okay. और उस पे राइटिंग का भी पार्ट आ जाता है, आप उस पे देखो, फिर हम देखेंगे उसकी रीडिंग का लेवल क्या है, ओके। By Monday I'll revert on this. Yeah, okay, do it। आपने एक कॉलम एक हफ्ते के लिए ले लिया, आप आराम से चेक करो, ओके, हो जाएगा। आप ऐसे भी करोगे तो मैक्सिमम उस पे ऐसी चीजें होगी जब जो आपको ऑलरेडी पता होगा, उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपने उसको बहुत करीब से देखा है, ठीक है। मैं करती तो मुझे टाइम लगता, आपको नहीं लगेगा। तो जो चीज आपको लगता है ये मुझे चेक करना है, उसको आपने अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, उस चीज को आप फोकसली चेक करोगे, दैट्स इट। फिर मुझे बताना, ओके। देयर आर 2 कॉलम विच इज एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव, दोनों का अलग अलग चेक करना है, ओके मैम, श्योर। हाँ व्यान मम्मा। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, आई एम नॉट प्रीटी श्योर ये स्पीच से कितना कनेक्टेड है, बट थोड़ा सा ना मैंने व्यान का लेटली नोटिस करा है कि मैम जैसे
फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी कोई पसंद की चीज अगर खा रही हूँ और मैंने इसको ऑफर नहीं किया जानबूझ के, तो ठीक है ये मांगेगा, तो एट टाइम्स मैम इसको ना वो कॉन्सेप्ट नहीं पता कि मतलब देने वाला, मतलब आस्किंग कॉन्सेप्ट होता है ना, एक परमिशन कॉन्सेप्ट होता है कि मम्मा ये मुझे भी दे दो या मुझे चाहिए ये। आपने तो ये पूछा उससे कि आपको चाहिए? मैम मतलब छीन लेता है एट टाइम। जैसे मैं बिस्किट, एक छोटा सा एग्जांपल है, बिस्किट खा रही हूँ एंड ही लाइक्स इट, तो अगर इसको चाहिए या तो ये जाके निकलवाएगा वहां से, और अगर इसको लग रहा है मम्मा खा रही है तो रादर देन आस्किंग ना, इसने कई बार मेरे हाथ से छीन लिया। सो विद पेरेंट्स इट्स ओके, यू नो, विद योर फैमिली मेंबर्स आई फाइंड इट्स ओके, लेकिन ग्रेजुअली वो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए वेटिंग ना कि मुझे कॉन्सेप्ट किसी की नहीं है। चीज, हाँ मुझे ये किसी और की चीज है और मुझे मांगनी है, ये कोई खा रहा है तो आई हैव टू आस्क फॉर इट। तो वो मैम कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं? वेटिंग इंट्रोड्यूस कराइए कि हम मम्मा काउंट ऑफ 5 कर रही है, उसके बाद आप मम्मा आपको दे देगी। वेटिंग इंट्रोड्यूस कराना है। काउंट ऑफ 2 से तो इंट्रोड्यूस कराना ही है कि हर जगह पे हमें वेटिंग करना है पहले। ओके आप वेटिंग इंट्रोड्यूस कराइए। व्यान जस्ट 2 मिनट्स वेट करेंगे, 2 काउंट तक वेट करेंगे, 1 2। उसके बाद वो वेट किया तो आप उसको तुरंत बिस्किट दे दो। पहले वेटिंग को आप एंकरेज करो, ठीक है? और मैम जैसे छीन ही मैम लेता है तो वो छीनी हुई चीज, मतलब जैसे मैं बिस्किट की बात कर रही हूँ, मैंने कल परसों नोटिस करा दैट यू जैसे नो वो वी आएगा तो आप तुरंत बिस्किट को ऊपर कर लीजिए, वेट कीजिए, आप बोलो 1 2, फिर आप उसको दे दो। ओके मैम। ओके उसको दिखना तो चाहिए कि उसको वेट करना वो 2 काउंट तक। उसके बाद हाँ हाँ सर्विका मम्मा। मैम मैंने जैसे सर्विका के केस में क्या किया था कि मैं उसकी कोई फेवरेट चीज लेके बैठ गई हूँ और वो देख रही है मेरी तरफ, तो मैंने झट से पूछ लिया सर्विका को चाहिए ये क्या, तो वो झट से बोलती है या। हाँ फिर मैंने बोला कि दे दो, बोलो दे दो। तो फिर उसने स्टार्ट में तो ऑब्वियसली नहीं बोलना किया, मैंने ही उसकी तरफ से बोला कि मम्मा दे दो, या और उसको दे दिया। अभी ऐसे हो गया है कि मैं अगर लेकर बैठूं खाने के लिए तो वो सीधा आके पूछती है दे दो। या यही तो होता तो है अभी स्ट्रक्चर। ऐसे हो गया। हाँ अभी और ऐसे हो आपको गया। अभी और नेक्स्ट मैम करना है, नेक्स्ट आपको ये करना है, उसकी जो भी फेवरेट चीज है वो आप बोलोगे। आपने दे दो करके आपने उसको दे दिया, अब आप उससे इनडायरेक्टली हाँ बोलोगे, शायद हो यस सकता है मैम। फोन, फोन है मेरे हाथ हम्म पे, फोन है तो उसको एक्चुअली फोन हम्म चाहिए, बोला दे दो, तो आप उसको इनडायरेक्टली बोलेगा अच्छा हम्म हम्म फोन दे दो, ठीक है? हम्म ठीक है आप उसको कुछ भी हाँ नहीं बोल रहे हो, बुलवा नहीं रहे हो, आपने इनडायरेक्टली बोल दिया कि ऐसे भी हम्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेवल। हम्म। ओके यस मैम, इससे फर्क तो पड़ा है, मतलब जिस चीजों में उनका इंटरेस्ट है उससे तो पड़ा। जैसे पापा जा रहे हैं तो पहले हम सिखाते थे कि पापा बब बाय, क्योंकि पा और बा को आ गया था। तो उसने अभी जैसे ही उसको बोलते हैं कि सर्विका पापा जा रहे हैं, या फिर मेड आती हैं वो जा रही होती हैं तो आंटी जा रही हैं, तो वो झट से बब्बाई बोल देती है। और पापा के केस में पापा बब्बाई, या पापा अब ऑफिस से आ गए, जस्ट अभी डोर ओपन किया आ गए, तो पापा बोलते हैं हाय सर्विका, तो सर्विका को भी बोलना होता है वो हाय, तो पूरा नहीं बोल पाती, हा पापा, हा पापा ऐसे। तो मैम इसको आप हा आगे कैसे और लेके ई को जाना है? अलग से करवाएंगे, ब्रेक करके, हा ई। हम्म ओके हा ई, हम्म फिर पापा, ठीक है? हम्म साउंड्स अलग होती हम्म। है ना तो या कभी कभी उसको नहीं समझ, अगर नहीं नहीं समझ आता है मैम तो वो मेरी तरफ देखती है, वो मेरे लिप्स रीड करती है। मैं एकदम साइलेंट नहीं निकालती। हाँ पापा, तो जैसे जैसे मैं उस तरह से उसको कैच करके फिर बोलती है हाँ पापा। तो फिर ये ऑटोमेटिकली फेड हो जाएगा या फिर इसके लिए भी कुछ करना होगा? नहीं नहीं वो फेड हो जाएगा, क्योंकि वो समझ रही है ना, तो ऑटोमेटिकली हम्म वो फेड हो जाएगा। ओके हम्म। और साउंड्स में मैम क आ गया है उसको, क प ब य, न में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मैम, न थ र ल, ये सब कैसे तो कराएं मैम? आप नहीं थे ना, तो मैं ENC 1 तो में एक चार्ट थैंक यू। डालती हूँ,
जो स्पीच साउंड की चार्ट होती है, जो करेक्ट एज पे आती है। ओके, सर्विका इज वेरी yes स्मॉल, र ल एंड ऑल, थ भी तब आता है जब बच्चे मोर देन अभी नहीं 6.5 years के ऊपर होते हैं। ओके, जैसे मैम थैंक यू क्लास फिनिश होने हाँ वाली होती है तो थैंक यू बोलना होता है, कार्ड है उसके पास तो वो कार्ड पिक कर लेगी और शो करेगी। जब हम कहेंगे कि सर्विका से थैंक, तो वो यू बोल देगी, ऊ। क्योंकि वो यू उसको और आता है ना। कभी कभी ऐसा होता हाँ है, हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि थैंक को वो कुछ तो मतलब करके कुछ ये करके फिर यू करेगी, तो वो ही हो जाता है कि कभी कभी वो मतलब एकदम इंस्टेंट बोल देती है। और ज्यादातर वो ना मेरे लिप्स को देखती है। दैट इज वेरी गुड, मैं वेरी गुड। साइलेंट मोड में बोलती हूँ हाँ यू, तो फिर वो उस तरह से जैसे जैसे मेरे लिप्स चलते हैं ना, वो साउंड निकालना स्टार्ट कर देती है। तो मैम इसी चीज इसके आगे फिर कैसे बढ़े, इसको ऐसे ही जैसे चल रहा है उसको कंटिन्यू रखें नहीं, या और एक्चुअली कुछ क्या ऐड होता करें? है, थैंक यू आपने जैसे बोला था, जैसे मैंने बोला कि हम्म थ, फिर ख, ये सारे वैसे वर्ड्स हम्म हैं जो हम्म, आते हैं लेटर एज पे। ठीक है, अच्छा। तो मैंने जैसे बोला था मैं आपको एक साउंड चार्ट भेजूंगी, उसके हम्म अकॉर्डिंगली ही साउंड चलती है। ठीक है, हम्म अगर आप कोई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे जो उसके एज के बियॉन्ड है तो वो हम्म नहीं आएगा, हम्म। क्योंकि उसका तो इट्स मैम नॉट ऐसे अबाउट ही जैसे ब्रेन, अभी इट्स अबाउट मजल। मजल उसको मोटिवेट नहीं करता है, क्योंकि मजल अपने टाइम पे ही ग्रोथ करता है, हम उसको ग्रोथ नहीं करवा सकते हैं, वो उसके टाइम पे ही मेच्योर्ड होता है। और र ल के लिए मजल का मूवमेंट बहुत तेज होना चाहिए, और र के लिए तो बिल्कुल वैसे, क्योंकि वो ट्विस्ट होता है, ये सब बच्चे हैं तो नहीं आएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो अपने आप मेच्योर्ड हो जाता है। जैसे मैम ऑटो साउंड मतलब एकदम हाँ धुर्र हम्म से, तो वो करके ऐसा कुछ करती है। वो सब्स्टिट्यूट कर लेती है। ये तो बहुत अच्छा है कि वो रुक नहीं रही है, वो सब्स्टिट्यूट कर लेती है, और सब्स्टिट्यूशन भी बहुत कॉमन है, एक एज तक बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं जैसे बोल रही हूँ ना, मैंने चार्ट भेजा तब आपको पता चलेगा कि आप किसके साउंड पे करा रहे थे जो ऑलरेडी उसके नहीं हो सकता है। ओके, तो आप उसको वही चीज कराओगे जो उसके एज पे है, और धीरे धीरे जैसे मैंने कल भी देखा था, वो इंट्रा वर्बल कम्युनिकेशन में इतनी अच्छी है, आपने ई यस आ उसने किया, ई आ ओ, वो अपने आप करती है ना, तो आप उस चीज को यूज कीजिए। ठीक है, यस अभी हम क्या खाने जा रहे हैं मैम। सर्विका, आपने बिल्कुल उसके सामने रख के बोला क्या करने जा रहे हैं, और वो आपकी फेस को तो बहुत अच्छे से नोटिस करती है। तो इतना यस ज्यादा मैम। पॉजिटिव चीजें हैं आपके पास आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं। तो मैम ओके, ऐसे ही तो आप कंटिन्यू मतलब इसी को। हाँ, इसी को कंटिन्यू करना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। ओके, पर जैसे मैंने बोला था, आप उसको दे दो पे दे देते थे, तो आपको बोल के देना है, आपको फोन दे रही हूँ, अच्छा फोन दे दो, तो वो या आ गया एप्पल दे दो। ऑटोमेटिकली फिर, मतलब हाँ पहले लगता था कि पता नहीं मतलब कब बोलेगी, लेकिन वो एक दिन एकदम से उसने बोलना स्टार्ट कर दिया और वो अभी तक है। हाँ, क्योंकि वो स्टिमुलेट हो गई ना, यही तो मैं हमेशा बोलती हूँ उसका, आप कितने बड़े एग्जाम्पल हो कि आप जितने टाइम तक आप फोर्स नहीं करोगे, ब्रेन अपने आप एक्टिव करेगा, अपना काम वो अपने आप करता रहेगा, पर आपको हार नहीं मानना है। आप एक दिन भी रुक गए होते तो ये दिन आप नहीं देख पाते, है ना, पर आपने कंटिन्यूअसली किया। तो यही चीज तो मैं सारे पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि आपको कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करना है, बच्चा अपने आप सीखेगा। ठीक है, तो आप इसको फोकस वो कीजिए, मैं बस एक्सपीरियंस कर रही हूँ। हाँ, बस आपको एक चीज करना है कि आप उसके साथ एक नाउन भी इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, मैम आई हैव जैसे कि वन उसे दे क्वेश्चन दो लास्ट। बोला, तो आप बोलोगे क्या देना है, आप ऑब्जेक्ट के साथ दिखा के एप्पल दे दो, ओके दे दिया। आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे हो, पर इनडायरेक्टली वो अपने आप करेक्ट कर रही है, और ये चीज ऑलरेडी है सर्विका में, तो अपने आप करेक्ट कर लेगी, तो वो 2 वर्ड्स हो जाएगा। 2 वर्ड्स जैसे पक्का हो जाएगा, फिर आप बोलोगे किससे पूछ रहे हो, मम्मा से एप्पल दे दो,
तो उसके बाद वो 3 वर्ड में बदल जाएगा। ओके Okay, ma'am. ओके Okay. Thank you, ma'am. Ma'am, I have one question regarding these alphabets. Ma'am, like जय के केस में you said कि वो age wise आता है. कुछ दिन पहले तक ये ट बहुत बोल रहा था and ट comes in the age of 5 years कि 5 years के बच्चे ट ये सब यूज करते हैं. पर वो ट मैं इसको टाटा के साथ रिलेट करने लग गई, पर वो धीरे धीरे वो फेड अवे हो गया ट. Like just now he said judge, he said judge. मतलब ये मतलब आते हैं जाते हैं वर्ड्स. It's not continuously कि भी हाँ ये एड ऑन नहीं हो रहे, आ रहे हैं फिर वो फेड अवे हो जाते हैं, फिर दूसरे नए अल्फाबेट्स आते हैं फिर वो फेड अवे हो जाते हैं. उस चीज को कैसे मतलब हम लाइक वो हमेशा रहें और हम उसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्चुअली आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी बोला था, अभी वो एक्चुअली साउंड का मीनिंग समझ नहीं रहा है जय, तो इसलिए मैंने बोला था आ ई एंड ऊ पे हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो जब बोल रहे हैं तो आप उसको ये नहीं बोलोगे वेरी गुड या ऐसे, आप बोलोगे अच्छा ज ज ज, ओके, आप उसी चीज को इमिटेट करेंगे. मैंने एक्चुअली लैंग्वेज स्टिमुलेशन में भी बताया था, ये भी एक टेक्निक है कि आप उसी को रिपीट करके दिखाओ. ज ज ज, जैसे उस दिन मैंने सेशन में किया था आ, तो उसने तुरंत उसके बाद भी किया आ. Yes, ma'am. मैंने उससे पूछा नहीं कि तुम मुझे रिपीट करो, पर वो अपने आप करता है. ये बच्चे को इमिटेट करना होता है, तो उसने भी कहा हा. ओके, तो आप वैसे ही दूसरे साउंड्स भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो. ठीक है मैम. ओके, पर अभी सिर्फ वोकलाइजेशन पे फोकस है. हाँ पूछिए. मैम मेरा बेटा विहान 7 इयर्स का है, उसको सारे फोनिक्स साउंड्स तो आ गए एक्सेप्ट रा. हम लोगों ने इसका ओरल वाला भी करवाया, सब करवाया, बट ना उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, मतलब रा साउंड इसका आता ही नहीं है. ओके हाँ, तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे बोला था उस दिन आप थे, तो आप बुर्र से स्टार्ट कीजिए. इर इर इर, सिर्फ आप उसके जो मूवमेंट है, टंग मूवमेंट है, उस पे पहले फोकस करेंगे. शायद हो सकता है उसकी टंग मूवमेंट पे वो चीज पॉसिबल नहीं आ रही है. क्या वो ला बोलता है? हाँ ला स्टार्ट कर दिया मैम, बट रा के लिए मैंने जैसे भूर ऐसे करके टंग से लिप से बहुत ट्राई किया, बट ना उसका आ ही नहीं रहा. उससे वाइब्रेटर से भी मैंने किया है. नहीं, आप पहले स्टार्ट कीजिए ब्र इर इर, ठीक है. जैसे इर आया तो इर्रा इर्रा इर आ, उसके बाद रा होता है. आप उसकी टंग को मूवमेंट पे लाएंगे तभी वो साउंड बनेगा. हो सकता है उसका टंग मैच्योर नहीं हुआ है रा के लिए, कोई बात नहीं है, आप इस चीज को रेगुलरली कराएंगे तो वो मैच्योर हो जाएगा. ओके, मैं देखती हूँ इफ आई हैव एनी मोर एक्टिविटीज फॉर र, देन आई विल पोस्ट इट इन दैट ग्रुप. थैंक यू मैम. दूसरी बात ये कि ये ना इसका जो मूवमेंट है माउथ का वो नहीं है, वैसे आ के लिए बहुत कम खुलता है, ओ के लिए भी बहुत कम, वो मूवमेंट नहीं है उसका. जॉ एक्सरसाइज कराना पड़ेगा. हो सकता है ये जगह स्टिफ हो, है ना, ये जगह स्टिफ होती है. हाँ, तो नहीं हो सकता है, वो ओपन नहीं करते हैं. और कभी कभार ऐसा होता है कि मसल आपने अभी कराया है तो लूज तो हो गए हैं, और एंकरेजमेंट नहीं है बच्चे को, क्योंकि इतना दिन स्टिफ था. आप सोचो इतने दिनों से स्टिफ है, तो अभी भी आपको लगेगा कि शायद स्टिफ ही होगा, तो वो कोशिश नहीं कर रहा है. तो आप एंकरेज करेंगे कि स्क्रीम करने का एंकरेज. अब कितने ऊंचे से हम आ बोलेंगे, चलो मम्मा के साथ बोलो आ, आपको ओपन करना है आ, ठीक है. आप एंकरेज करेंगे. और मैम जो भी और साउंड भी बोलता है ना बहुत धीरे बोलता है, जैसे मतलब सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ, इतना उसका लो साउंड है. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि लाउडनेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप या तो उसके ईयर्स को कप करके बुलवा सकते हैं. ओके, या आप उसके कान में बहुत हल्के से विस्पर करके बोल सकते हैं. मैं जो आपको विस्पर करूंगी आप उसको लाउडली बोलोगे, ठीक है. विस्पर गेम होता है ये. मैंने आपको बोला बा, तो आपको बोलना है बा, ठीक है. मैंने बोला बा, तो आपको बोलना है बा, ठीक है. तो विस्पर गेम होता है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है.
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप ग्रुप पे डाल दीजिए। ठीक है। एंड मैम इसके मूवमेंट के लिए आपने क्या बोला था कि प्रॉपर मूवमेंट है उसकी एक्सरसाइज? इसके लिए जॉ एक्सरसाइजेस कराना है आपको। जॉ का जो एक्सरसाइज होता है वो कराना है, आ ई। ओके। और पाम को बॉल बिल्कुल रब करके आप ऐसे मसाज करेंगे। आप खुद करके देखेंगे, यहाँ पे आपको हीट प्रोड्यूस होगा। जब हीट प्रोड्यूस होता है तो बच्चे मसल रिलैक्स होता है। ओके। 3 टाइम्स करना है आपको ये करके, ठीक है। आप दिन में 2 बार करा सकते हैं, 3 बार करा सकते हैं जॉ एक्सरसाइजेस। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके Ma'am, last question. How do I introduce Barakhadi and Kakha Gagha? यू मीन वर्णमाला? हाँ, वर्णमाला, सॉरी। ओके। आपको वर्णमाला इंट्रोड्यूस कराना है तो आप पहले जो चार्ट होता है आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो आपके साथ तुरंत बैठ के करेगा, ठीक है। आप नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हो या राइम्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। आ से अनार या आ से आम, वैसे आप स्टार्ट करके फिर ख से कबूतर या आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो। और धीरे धीरे आप उससे डिमांड कर सकते हो कि क्या है, किससे अनार होता है, आ से फिर अनार। ओके। आपने जैसे ABCD इंट्रोड्यूस कराया वैसे ही आपको ये भी इंट्रोड्यूस कराना है धीरे धीरे। आप सिर्फ 2 और 3 वर्णमाला लेंगे हफ्ते में, ज्यादा नहीं। डोंट कंफ्यूज हिम, बिकॉज आपने बोला था उसको लेटर रिकग्निशन में भी प्रॉब्लम है। यस। तो आप देखिए कि वो कैसे कोऑपरेट करता है, और आपको रीचेक करते रहना है इंग्लिश के साथ भी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अ से अनार, आ से आ भी आता है फोनेटिक्स पे, दोनों मिक्स हो सकता है। तो आपको दोनों चेक करना है। ये करा रहे हो, नेक्स्ट डे वो भी कराना है, वरना फेड हो जाएगा, कोई एक फेड हो जाएगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ, टेक इट स्लो, वेरी स्लो, पर हम कराएंगे। ओके। कंफ्यूज ना करने के लिए हम पक्का कराएंगे। Sure, ma'am. Sure. ओके। Yeah. मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है। यस। जैसे कि देवांशी का आर्टिकुलेशन वाला आपने एक सेशन लिया था, तो उसमें कुछ बताया था। तो देवांशी को ऐसे प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, बट आर्टिकुलेशन इसको कहीं ऐड कर सकते हैं, मतलब इसके लेवल पे या कुछ उस तरीके का? नहीं, आर्टिकुलेशन पे देवांशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे साउंड्स इक्वली प्रोड्यूस करती है, और मैंने ये खुद चेक किया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा फोकस सिर्फ कम्युनिकेशन पे है। ख भी करती है, ल भी करती है, र भी करती है, तो इसके ऊपर कोई साउंड है ही नहीं। तो आपको साउंड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। साउंड उसको सारे साउंड मैंने खुद पर्सनली चेक किया है, साउंड्स में उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिए, जो मैंने बोला था वैसे सेशन पे फोकस कीजिए, और ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए अभी। ओके। हाँ, पूछिए। और कोई क्वेश्चन है? आई होप आप लोग ट्रैक बना रहे हो अच्छे से, गोल सेट कर रहे हो। गोल छोटी होनी चाहिए पर मीनिंगफुल होना चाहिए, बच्चे के लेवल का होना चाहिए। ओके। तो बच्चा वोकलाइजेशन पे है तो आप प्लीज प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। आप उसको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स, ठीक है। आप ABCD के बगैर वर्ड्स नहीं बना सकते हैं, वैसे ही प्री लिंग्विस्टिक के फाउंडेशन के बिना आप स्पीच नहीं सिखा सकते। ओके। आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, बी मोर क्रिएटिव, मोर अच्छे तरीके से, और बच्चे से हाई इंटोनेशन पे, वेरियस इंटोनेशन पे बात करेंगे। बिल्कुल वैसे नहीं जैसे 2 अडल्ट बात करते हैं, वैसे जैसे बच्चे और मम्मा बात करती है। ओके। जिन्होंने भी मुझे स्कूल में देखा है या मेरे सेशन देखा है, आपको पता होगा कि मेरी टोन बच्चों के साथ अलग होती है। उसका कोई मीनिंग तो होता होगा ना, इसलिए मैं बदलती हूँ। ओके।
सो प्लीज फोकस, गोल छोटा रखना है। कोई इश्यूज हो तो आप ग्रुप है तो ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। जिन्होंने भी मुझसे पूछा जैसे कि र के लिए टंग एक्सरसाइजेस हो, जॉ एक्सरसाइजेस हो, वो मैं आपको ग्रुप पे डाल देती हूँ, ठीक है। जो मुझे एक्टिविटी लगा है वो भी मैं डाल देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर समथिंग आई मिस्ड तो प्लीज पुट अ रिमाइंडर, ओके। Okay, ma'am. Thank you. Welcome. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Bye. Thank you, All the ma'am. best. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you, ma'am.